Hello and welcome to All Indians Matter. I'm Ashraf Engineer. Few would dispute that the Rashtriya Swayamsevak Sangh or RSS is the most powerful organization in India today. Its political arm, the Bharatiya Janata Party, is in power at the center and in most key states. Its allied organizations wield great influence and its grip on our institutions tightens with each passing day. Its idea of a Hindu Rashtra is abhorrent to many, including me, and its philosophy of othering and its strong upper caste bias is very bad news for India. In this episode, I want to talk to and about a man, a Dalit, who was part of the RSS but left after its attitude towards lower castes became apparent to him. He transformed from a hardcore Swayamsevak to an opponent of the RSS. What happened to him? What led to this change? When did the clouds part? What was he taught? And what does this tell us about the RSS's view of India and Dalits in particular? All Indians matter. We have on the show Bhavar Mekwanshi. Bhavarji was born on February 25, 1975 in Sirdias village in Rajasthan's Bhilwara district. In the 1980s, this Dalit teenager started attending RSS shakhas without really understanding too much about the organization. Over time, he was taught to harbor a visceral hatred for Muslims and to aggressively assert pride in his Hindu identity. He even received military training from the organization and became something of a fanatic, vowing to give up his life if needed for the nation and battle so called Muslim traitors. He hoped to hoist the saffron flag atop the Babri Masjid one day, but as it happens so often in life, irony struck. He faced severe discrimination within the RSS because he was a Dalit, and he soon realized that it's an upper caste organization that has one vision for them and another for lower castes. Disillusioned, he broke away from the RSS, went on to study art history, and took part in student politics and several people's protests. Today, Bhavarji is an activist associated with the People's Union of Civil Liberties and is the founder of the Dalit, Adivasi Evam Ghumantu Samaj Adhikar Abhiyan Rajasthan organization. His book, Main Kar Sevak Tha, I Was a Car Sevak, was published in Hindi in 2019, and its English translation, I Could Not Be Hindu, The Story of a Dalit in the RSS, was published a year later. Today, we will talk about his journey, how the RSS indoctrinates its cadre, whether it is truly the inclusive organization it claims to be, and its vision for India. This conversation will be conducted largely in Hindi. Bawarji, namaste. नमस्ते अशरफ साहब। भंवर जी, आप कहाँ पे पैदा हुए? आपका गांव कैसा था? आपका बचपन कैसा था? मैं राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मांडल तहसील के सिडियास विलेज में पैदा हुआ। वो गांव भी वैसा ही था जैसा भारत के तमाम गांव होते हैं, और थोड़ा थोड़ा फर्क अब दिखता है, लेकिन उस समय काफी जाति वंचनाएं और वर्जनाएं थी, जहां हमारे लोगों को घरों में जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उनके घरों में प्रवेश नहीं मिलता था, और हमने कभी अपने गांव के मंदिर को ऊपर चढ़ करके नहीं देखा। हैंडपंपों से, कुओं से हमको दूर रहना होता था। तो बचपन एक तरीके से जाति के आधार पर आपका बहिष्कार कैसे होता है, आपको एक तरफ कैसे किया जाता है, उस तरह की को देखते हुए बीता। शायद मुझे तीसरी क्लास में ये समझ में आने लगा था कि हम उस जाति से आते हैं जो नीची समझी जाती है, और जिसको किसी के घर में किचन में प्रवेश का अधिकार नहीं है, जिसको किसी का खाना नहीं छूना चाहिए, जिसको किसी का पानी नहीं छूना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे समुदाय के लोगों को भी टच नहीं करना चाहिए। वो भी नहीं टच करते थे हमको। तो इस तरह का बचपन था। हालांकि हमारा जो बस्ती है, जो कि गांव से थोड़ा दूर है, वहां हम लोग रहते थे, और वो पूरी दलित बस्ती है। चूंकि हम अपनी ही कम्युनिटी के लोग थे, तो वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। लेकिन ये मूल गांव से थोड़ा सा हट करके हमारे पूर्वजों ने ये अलग से अपने खेतों में रहना शुरू किया, क्योंकि उस गांव में, हमारा जो मुख्य गांव था, उसमें बहुत छुआछूत उनको झेलनी पड़ती थी। मेरे पिताजी किसान हैं, और वो उस समय उनके पास काफी भेड़ और बकरियां, ऊंट वगैरह हुआ करते थे। तो एक तरीके से मेरा बचपन जो है चरवाहे के रूप में बीता, ये सब करते हुए। और
गाँव में जो खेती-बाड़ी होती है, वो सारा परिवार हमारा पशुपालन, खेती-बाड़ी ये सब चीज़ें करता रहता है। पिताजी थोड़ा-सा राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और वो उसमें भी सक्रियता रखते थे। तो उनका खेती, राजनीति और इन सब चीज़ों में एक मिक्स सा वो था और मेरा जो परिवार है वो कुछ पीढ़ियों से हमारा जो दलित बस्ती है, उसमें जो रामदेव मंदिर, रामदेव पीर का जो मंदिर होता है, उसकी पूजा अर्चना करने का काम अ, हमारे हमारे परिवार को मिला हुआ था। तो मेरे मेरे को भी बचपन में रामदेव पीर को पूजा-वूजा करने का। तो एक तरीके से कबीर पंथ और रामदेव पीर मतलब सूफीज़्म और कबीर धारा का एक प्रभाव हमारे परिवार में और मेरे बचपन में रहा है। तो आप आरएसएस शाखा में कैसे पहुंचे पहली बार? मैं जब छठी 7वीं क्लास में पढ़ने के लिए अपने गाँव को छोड़ कर के और 6 किलोमीटर दूर के गाँव मोरका निम्बाड़ा पहुँचा, तो वहाँ जो हमें भूगोल विषय पढ़ाते थे, बंसीलाल सेन जो टीचर थे हमारे और वो बहुत अच्छा गाते थे और हमारी जो प्रार्थना सभा असेंबली होती थी, उसमें भी उनका बहुत भूमिका उनका रहता था। अच्छा पढ़ाते भी थे। तो उन्होंने एक तरीके से मुझे पकड़ा आरएसएस की शाखा में जाने के लिए क्योंकि वो ही हमारे गाँव में पहली बार आए शाखा लगाने के लिए। लेकिन इसी दरमियान जब ये शाखा शुरू हुई, उससे थोड़ा-सा पहले 2-3 महीने पहले मुझे वो एक अखबार दिया करते थे मेरे गाँव में जो आयुर्वेद अस्पताल के कंपाउंडर थे, उनको देने के लिए। और वो जो अखबार होता था उसका नाम था पंचजन्य, हिंदी में आता था। तो मैं वो अखबार उनसे लाता था और बीच रास्ते में ला करके एक रात मेरे पास वो रहता था तो मैं पढ़ लेता था उसको। तो एक तरीके से मैं 2-3 महीने तक वो पढ़ते रहा क्योंकि मेरा पढ़ने का बहुत शुरू से रुचि रहा। वो पढ़ना और उसी दरमियान उन्होंने कहा कि हम आपके गाँव में आकर के थोड़ा खेलेंगे, कूदेंगे और एक साथ तो हमें तो अच्छा लगा कि हमारे टीचर, जिनको हम गुरुजी कहते हैं, वो हमारे गाँव में आकर हमारे साथ खेलेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आमतौर पे टीचर इस तरीके से फ्रेंडली होते नहीं हैं। उनका जो ये फ्रेंडली रूप था और थोड़ा हम उनसे प्रभावित भी थे कि वो इतना अच्छा गाते हैं। क्योंकि मुझे वो अखबार भी देते थे, तो हमारा थोड़ा एक रिश्ता उनके साथ बना हुआ था। तो जब उन्होंने आना शुरू किया, फिर मेरी बस्ती और मेरे मूल गाँव के बीच में एक जो सार्वजनिक जगह थी सरकारी, उसमें उन्होंने हम बच्चों को जो कि स्कूल में पढ़ने जाते थे, उन तमाम बच्चों को जो कि 15-20 बच्चे हुआ करते थे, अलग-अलग जाति के, उनको इकट्ठा करके उन्होंने शुरू-शुरू में 1-2 महीना केवल खेल-कूद करवाते थे और अच्छा गाना-वाना गाते थे और सिखाते थे। तो वो खेल चलता था, फिर थोड़ा और बढ़ा तो थोड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज़ वगैरह करने पड़े। फिर और आगे बढ़ा तो फिर 15 मिनट बैठ कर के और थोड़ा बौद्धिक चर्चा होने लगी। और वो जो चर्चा होने लगी तो उसमें फिर वो विषय ये लेने लगे कि हम कौन हैं, ये देश किनका है, विदेशी आक्रांताओं ने आकर के इस देश को बार-बार लूटा, नष्ट किया। तो ये इस तरह की बातें शुरू होने लगी। तो मैं बहुत जल्दी रिलेट करने लगा क्योंकि मैं पांचजन्य तो पढ़ ही रहा था, पिछले 7-8 महीने से। और अब ये जो हमारे टीचर थे गुरुजी वो भी वही बात कह रहे हैं। तो बहुत जल्दी मुझे उस आइडियोलॉजी ने एक तरीके से वो आकर्षण था और मेरे लिए आइडियोलॉजी क्या होती है ये तो बहुत बात की बात थी पर वो जो विचार था जो कि पहला विचार जो मुझे मिला वो स्कूल के बाद वो वही एक विचार था जहां पर ये सारी बातें सिखाई जा रही थी और चूंकि हमारा जो पूरा हिंदी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो प्राइमरी टीचर हैं अपर प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं और न केवल प्राइमरी बल्कि मुझे लगता है कि अब तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी ये पूरा जो शिक्षण में जो लोग लगे हुए हैं ये बहुत बड़ा एक काडर है आरएसएस का जो ये सारी चीजें लोगों को पकड़ता है और आरएसएस की शाखाएं शुरू करने का काम जो है ये मूलतः इनके जिम्मे रहता है और चूंकि छोटी उम्र के बच्चे जो थोड़े से किशोर अवस्था में हैं और अभी उनका कोई विचार नहीं बना है वो अभी केवल खेलना कूदना चाहते हैं मौज मस्ती चाहते हैं ऐसे छोटे बच्चों को पकड़ करके और शाखा शुरू करते हैं और फिर बाद में मुझे समझ में आया कि उनका ये कहना था कि हम कोरे कागज पे लिखते हैं मतलब पके हुए घड़े पर हम कुछ नहीं बनाते हैं क्योंकि ज्यादा उम्र का व्यक्ति कुछ सोच विचार रखता है तो वो नहीं सीखेगा तो एकदम नए लोगों को पकड़ने का तो उन्होंने तो पूरा सोच समझ के पकड़ा होगा पर मेरा कोई सोच समझ के उसमें जाना नहीं हुआ
तो मैंने कोई सोच समझ के विचारधारा के आधार पे नहीं गया वहाँ। जी। लेकिन जब गया तो मैं तो खेल खेलने गया, वहाँ क्या खेल चल रहा है वो तो बहुत बाद में जाके पता। जी, उसके बारे में और भी ब ब बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने पढ़ा, कहीं पे आपने लिखा था कि आपकी फैमिली है, स्पेशली आपके फादर, पिताजी, वो आपका आरएसएस में जाने के खिलाफ थे। तो उसके बारे में कुछ कहिए? हाँ, देखिए शुरू में तो उनको नहीं समझ में आया कि क्या करने जा रहे हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं गाँव में, वैसे ही उनको लगा कि खेलने के लिए जा रहा है। लेकिन जब मैंने 5-6 महीनों बाद में मैंने आरएसएस का ड्रेस, जिसको गणवेश कहते हैं, वो पहली बार पहना, टोपी लगाया, हाफ पैंट पहना, हाथ में लाठी उठा करके, और जब मैं घर से निकला, तो उनको समझ में आया कि ये कुछ गड़बड़ चीज़ हो रही है। उससे पहले उनको लगा टीचर आ रहे हैं, ये कुछ बातें खेल रहे हैं, खेल-कूद करते रहते हैं। और तब उन्होंने पहली बार मुझे टोका और मुझे उन्होंने कहा, क्योंकि वो आरएसएस का ध्यान उनको नहीं था। वो ये जानते थे कि कांग्रेस होती है और जनता पार्टी होती है। उनके लिए भाजपा जो है वो जनता पार्टी। तो उन्होंने मुझे सबसे पहला उनका जो कमेंट था, उनका ये था कि ये जनता पार्टी वाले दोगले लोग। तो मैंने उनको कहा, आप को पता नहीं, पहली बात तो ये जनता पार्टी है नहीं, ये कोई पार्टी नहीं है, ये तो देशभक्त लोगों का संगठन है। लेकिन उन्होंने रोकने की कोशिश की और तब तक मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चढ़ गई थी, पांचजन्य से चढ़ गई थी, इधर बात होने से चढ़ गई थी। ये बातें होने लगी थी कि इस देश का विभाजन करने में नेहरू और गांधी, इन लोगों का हाथ रहा। कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है, उनका फेवर करती है। तो चूँकि मेरे पिताजी कांग्रेस के लीडर रहे, तो मुझे लगने लगा कि हाँ, ये तो विरोध करेंगे, क्योंकि ये तो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की सही बात जो है लोगों को पता चले। तो मेरा आरएसएस में जो समय रहा, एक तरीके से 6 महीने बाद में, अगले साढ़े 4 साल का, वो मेरे पिताजी के साथ संघर्ष में बीता। और वो संघर्ष का ऐसा संघर्ष नहीं था कि कोई बेअदबी थी उनकी या कुछ था, लेकिन मेरे अंदर ये चलता रहता था कि हाँ, ये कांग्रेस के लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता है। इनको तो देशभक्ति का ही समझ नहीं है। इन्हीं के नेताओं ने तो देश को बाँट दिया, ये नेहरू ने ये कर दिया, कश्मीर कर दिया। वो सब चीज़ें जो अभी भी चलती है, आज अभी भी बहुत चर्चा में रहती है, ये वो चीज़ें उस उम्र में मेरे दिमाग में बैठने लगी और मेरे अंतर्द्वंद चलते रहे। लेकिन मेरे पिताजी निरंतर उसके खिलाफ रहे। और बीच-बीच में वो टोकते रहते थे। और बाद के दिनों में मैं चूँकि पढ़ने के लिए भीलवाड़ा चला गया, और जो कि उनके उससे बाहर था, वो गाँव में थे, मैं शहर में था, तो फिर मेरे को खुल कर के वहाँ पर और आरएसएस के भीतर घुसने का और उसको समझने का वो सारा मौका वहाँ पर मिलता रहा। लेकिन वो विरोधी रहे। जी। तो आपको शाखा में आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, विचारधारा है, वो उसके बारे में क्या सिखाया गया? देखिए, सबसे पहले तो ये था कि उनका इस पे जोर था कि हमें मजबूत होना चाहिए शारीरिक रूप से, फिज़िकली मजबूत होने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ ये कहा जाता था कि आम हिंदू जो है, वो सज्जन होता है और कायर होता है। लेकिन आम मुसलमान जो है वो दुर्जन होता है, गुंडा होता है। तो अगर उनसे मुकाबला करना है, क्योंकि वो हमारी बहन-बेटियों को उठा ले जाते हैं। उनको धर्म ये सिखाता है कि अगर किसी हिंदू की लड़की को तुम शादी करोगे या उसका इज़्ज़त खराब करोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी। तो ये जो लोग हैं, जो आपके मंदिरों को तोड़ते हैं, जो आपके महिलाओं को उनके साथ यौन अपराध करते हैं, इन लोगों से अगर लड़ना है, तो हर हिंदू को सक्षम होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। तो ये बात के साथ वो जो फिज़िकल ट्रेनिंग आरएसएस में दी जाती थी, जो शुरू में खेल, और खेल भी एक तो होता है जो सामान्य खेल होता है, जैसे आरएसएस की शाखा में कोई क्रिकेट तो नहीं खिलाते हैं वो, क्रिकेट के तो विरोध में है, वो कबड्डी खिलाते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसा स्कंद युद्ध करवाएँगे, तो उसमें जो 2 टोली बनेगी, एक टोली महाराणा प्रताप की बनेगी, दूसरी टोली अकबर की बनेगी, ये किसी और की बनेगी, वो शिवाजी की बनेगी, सामने वाला अफ़ज़ल खां की बनेगी, और शिवाजी की टोली जाके अफ़ज़ल खां को पीट रही है, उसको वो कर रही है। तो मतलब खेल में भी ऐसी चीज़ें थी जो बिना कहे ही आपको
एक पक्ष चुनने के लिए कहती थी कि आप महाराणा प्रताप को चुने, क्योंकि अकबर जो है वो महाराणा प्रताप के खिलाफ था, उस समय जो मेवाड़ था उसकी आजादी के खिलाफ था। या अफजल खान बहुत धूर्त आदमी था और वो जब मिलने आया तो वो चाहता था कि शिवाजी के उसमें बगनखे डाल करके उसकी अंतड़ियों को खींच ले, मतलब वो उनको कत्ल करना चाहता था। तो ऐसी तमाम तमाम बातें, फिर मोहम्मद गोरी कब आया, गजनी कब आया, बाबर कब आया, ये सब चीजें उसमें चलती रहती थी। और ये सब खेल के दरमियान। देन फिर जो खेल के बाद में सूर्य नमस्कार वगैरह होता था, तो सूर्य नमस्कार का सारा जो चीजें हैं वो तो वैदिक मंत्रों के आधार पर संस्कृत में होता है। और आरएसएस की पूरी शाखा में जितनी भी जो ऑर्डर दिए जाते हैं, जिनको आज्ञा कहा जाता है, वो आज्ञाएं संस्कृत भाषा में दी जाती है। और हमें ये सिखाया जाता था कि संस्कृत देववाणी है, वो देवताओं की भाषा है। तो और इसी दरमियान ये भी बातें होती थी, संघ का जो काम है, आरएसएस का जो काम है, वो कोई सामान्य इंसानों का काम नहीं है, वो ईश्वरीय काम है, देवीय काम है। तो अब देव भाषा में देवीय काम के लिए अगर आपको आज्ञा दी जा रही है, तो आप उसको पूरा करते हुए आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत ही डिवाइन काम कर रहे हैं। आप उसमें कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं है। तो वो इस तरह का चीजें हर चीज में ऐसा होता था। वहां जो गीत गाए जाते थे, हर बाला चंदन की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम का, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। तो वो इतने जितने भी गाने, जितने भी खेल, जितना भी वहाँ साहित्य और जितनी भी बातें की जाती हैं, वो सब ऐसी चीजें थी कि वो सबका सब चीजें आपके अंदर आरएसएस की फिलोसफी को इतना चुपचाप डालते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है कि किसी के खिलाफ डाला जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपका खून शुद्ध है। अब जब आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो इसका मतलब कोई तो है जो निकृष्ट है, और आपका रक्त अगर शुद्ध है तो इसका मतलब कोई तो रक्त है जो शुद्ध नहीं है, वो वर्ण संकर है या वो गड़बड़ है। जब बहुत प्यार से वहां सिखाया जा रहा है कि हमारी जन्मभूमि, मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि भारत है। अब जब पुण्य भूमि भारत है तो फिर कौन लोग हैं जिसकी पुण्य भूमि भारत नहीं है? वो लोग जिनका मक्का में पुण्य भूमि है, वो लोग जिनकी यरूशलेम में पुण्य भूमि है। तो अचानक समझ में आने लगता है कि अच्छा, इन लोगों की मातृभूमि तो भारत हो सकती है, पितृभूमि भी भारत हो सकती है, लेकिन चूंकि इनकी पुण्य भूमि तो कहीं और है, तो ये भारत के कैसे हुए? ये तो इस देश के सगे हो ही नहीं सकते। तो इतना चालाकी से और इतनी सरलता से एक ऐसी उम्र में जब आपके दिमाग में चीजें तुरंत चली जाएगी और वो बैठ जाएगी, जम जाएगी वहां पे, ये सब चीजें बताई जाती थी। और एक दिन नहीं बल्कि रोज, हर दिन 1 घंटा। तो अब आप सोचिए कि वो जो 1 घंटा सिखाया जाता था, वो 23 घंटे या जितने भी घंटे व्यक्ति जागृत रहता है, उतने घंटे उसके दिमाग में वो चलता रहता है। फिर वो सोच वैसा ही बनता है। जो जैसे मुझे जब वो ये सब बातें आती थी कि मदरसे जो है ये आतंकवाद के अड्डे हैं, ये जो मस्जिदें हैं इनके नीचे तहखाने हैं और उन तहखानों में हथियार भरे हुए हैं। तो मैं जब भी किसी मुस्लिम उससे निकलता था मस्जिद के पास से, और मुझे किसी मदरसे से कोई आवाज आती, वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे हिल हिल के कुछ कुछ पाठ करते थे, मुझे लगता है ये सब आतंकवादी बनाए जा रहे हैं। इनको तो अलिफ से अलगाववाद सिखाया जा रहा है। तो अल्लाह नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि अलगाववाद सिखाया जा रहा है, क्योंकि हमें ये सिखाया जा रहा था। और मुझे लगता था कि इस गली से जल्दी से निकल जाया जाए, क्योंकि मस्जिद के नीचे जो तहखाना है उसमें जो जखीरा है हथियारों का, कोई लेकर के उधर ऊपर नहीं आ जाए। तो ये सब चीजें उस छोटी उम्र में भर भर दी जाती थी। और फिर हर बार ये लगता था, क्योंकि ये कहते थे कि इनके बच्चे नहा धो करके आते हैं, सेंट लगा के आते हैं, फिर हमारी बच्चियों पर नजर डालते हैं। तो मैं छठी सातवीं आठवीं क्लास में मैं ये सोचने लगा था कि अच्छा, मेरे जो क्लास फेलो है, कोई सिद्दीक है या कोई आरिफ है, ये क्या कर रहे हैं? ये कहीं ये हमारे साथ पढ़ने वाली लड़कियों पे तो डोरे नहीं डाल रहे हैं। तो लव जिहाद तो बहुत बाद का टर्म आया, लेकिन ये बातें जो है किसी न किसी रूप में सदैव विद्यमान थी। और वो 1 घंटा जो है, जिसको वो कहते हैं आरएसएस, दावा करते हैं कि हम तो उसमें देशभक्ति सिखाते हैं, दरअसल उसमें एक अजीब किस्म की अंधभक्ति सिखाई जाती है। वो देश की भक्ति नहीं है, बल्कि इनका जो विचार है उसके प्रति इतना ज्यादा श्रद्धालु या इतना ज्यादा उसके प्रति आपको समर्पित बना दिया जाता है कि
बिल्कुल आत्मघाती दस्ते जैसे होते हैं, वैसा पूरा ट्रेनिंग होती रहती है और बहुत ही स्लोली, मतलब ये पॉइज़न करने जी, का जो काम ये है। क्लासिक इंडोक्ट्रिनेशन की स्ट्रैटेजी है। तो ये आपने सब ट्रेनिंग की बताई, तो उसमें हथियार की भी ट्रेनिंग होती थी? मुझे लगता है कि देखिए सबसे पहले तो लाठी सिखाया जाता था, क्योंकि हर संघ के स्वयंसेवक को की गणवेश में लाठी जो है, जिसको दंड कहा जाता है, उनकी गणवेश में दंड अनिवार्य है। और लाठी पर कविताएं बोली जाती थी कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखी है संग। तो वो सदा आपको लाठी अपने हाथ में रखनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि वहाँ जितने भी गुणगान किए जाते थे, जितने भी देवी देवताओं के बारे में बताया जाता था, तो वो कोई भी देवता ऐसा नहीं था जिसके बारे में ये कहा जाता हो कि इसके हाथ में हथियार नहीं। वो कहते थे कि देखिए हमारे सारे देवताओं के कितने हाथ पांव भुजाएं हैं, और उनकी हर भुजा में कोई हथियार है। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, किसी के हाथ में ये तलवार है, धनुष है, ये है। तो उनका कहने का मतलब है कि अनिवार्य रूप से हर हिंदू को हथियार रखना चाहिए, उसकी एक सैन्य ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो लाठी एक शुरुआत का कदम है। और संघ की जो पूरी ट्रेनिंग है, जिसको ओटीसी कहा जाता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप, वो फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर होता है और थर्ड ईयर नागपुर में होता है। तो उनमें बाकायदा क्रमबद्ध तरीके से चीजें चलाना सिखाया जाता है। जो आपकी फर्स्ट ईयर होती है उसमें लाठी चलाने का ट्रेनिंग होता है, वो शाखा में भी होता है खुलेआम। और उसके बाद फिर आप आगे जाते हैं तो फिर तलवार, छुरा, ये सब सिखाया जाता है। और जब आप नागपुर में जाकर के अंतिम वर्ष का ट्रेनिंग करते हैं, थर्ड ईयर का, तो वहां पर फिर पिस्तौल वगैरह भी सिखाते हैं। लेकिन चूंकि मैं तो वहां तक पहुंचा नहीं, तो हम हमारी शाखा में तो लाठी चलाने का प्रशिक्षण होता था। और इस दरमियान चूंकि राम मंदिर का जब हुआ, तो हमें एक एक महंत लाल बाबा प्रेमदास थे, उनके आश्रम पे ये पेट्रोल बम, सुतली बम, ऐसे कुछ बनाने सिखाए कि जरूरत पड़ जाए, कभी भी कोई हमला हो जाए तो ये सीख, ये आत्मरक्षा के लिए। और सारी हथियारों की ट्रेनिंग जो है वो आत्मरक्षा के लिए सिखाई जाती है। ये कहा जाता है कि ये हम किसी पे आक्रमण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी रक्षा के लिए ये सारी चीज कर रहे हैं। तो जब पथ संचलन निकलता था, तो पथ संचलन में भगवा ध्वज के चारों तरफ तलवारें लेकर के लोग चलते थे। बाकी सबके हाथ में लाठी होती थी, लेकिन जो लोग आगे घोड़ी पर चलते थे और बीच में फिर वो आपका जो बैंड चलता है, और उसके बाद में जहां झंडा होता है भगवा, उसके चारों तरफ जो लोग चलते हैं उनके हाथ में बाकायदा नंगी तलवारें होती है। तो क्रमबद्ध तरीके से वहां जैसे जैसे भरोसा होता जाता है उनको कि भाई हमारी जो विचार है इसके दिमाग में बैठ रहा है, तो फिर वो क्रमबद्ध तरीके से हथियारों की बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और वहाँ शस्त्र पूजन होता है, विजयादशमी जो होती है उसमें एक दिन बाकायदा शस्त्र पूजन होता है। तो शस्त्रों को लेकर के शस्त्र पूजन, सैन्यकरण और ये सब बातों को लेकर के आरएसएस में कोई ऐसा नहीं है कि वो मना करते हो, वो तो बाकायदा इसका प्रचार करते हैं। हो सकता है कि बाहर कहते हो कि हम अहिंसक हैं और वो सारी चीज है, लेकिन अंदर तो वो लोगों को सिखाते हैं, चाहे वो आत्मरक्षा के नाम पे ही सिखा रहे हैं, लेकिन हिंसा तो सिखाते ही हैं। आर्म्स की ट्रेनिंग भी बाकायदा देते जी। तो आपने तो बताया कि ये सब इंडोक्ट्रिनेशन है, ट्रेनिंग है, आपके पर्सनैलिटी पे, आपके विचार पे क्या असर पड़ा? आपने पहले भी लिखा है कि एक फैनेटिक जैसे बन गए आप, युद्ध करने के लिए भी तैयार थे, उनके खिलाफ जो आप सोचते थे कि जो हिंदुइज़्म के खिलाफ है या देश के खिलाफ है। तो पहली बार आपको संघ के बारे में डाउट कभी आया? हैं। देखिए, डाउट उस रूप में नहीं आया, मतलब कुछ चीजों को लेकर के कुछ बातें थी। जैसे हमारे भूगोल के टीचर जब शाखा लगाते थे और वो सूर्य नमस्कार करवाते थे, तो थोड़ा असमंजस था कि यही टीचर है जो भूगोल पढ़ा रहे हैं स्कूल में और कह रहे हैं सूर्य आग का गोला है, और यही बंदा शाम को आकर के और शाखा में ये कह रहा है ओम सूर्याय नमः, सवितु सूर्य नारायणाय नमः, हिरण्य गर्भाय नमः। तो ऐसे ही पूछा उनसे कि सर ये, नहीं गुरु जी, ये सूर्य आग का गोला है या सूर्य देवता है? तो उनका क्लासिक उत्तर था, वही जो आरएसएस का उत्तर होता है, आप पकड़ नहीं सकते उनको। तो उन्होंने कहा, बंधु, सूर्य विद्यालय में आग का गोला है,
लेकिन शाखा में जो है वो देवता है। तो ऐसी चीजों से शुरू हुई चीजें। पर चूंकि मैं बहुत बातचीत करता था, प्रश्न वश्न उठाता रहता था शाखा में भी, और जो एकत्रीकरण होते थे, जो बौद्धिक चीजें होती थी, जो छोटे जो प्रशिक्षण होते थे उनमें भी, और जो भी लोग आते थे संघ के पदाधिकारी, जिनको अधिकारी कहा जाता था, वो लोग जब आते थे बाहर से, तो मैं निरंतर चीजों पे, क्योंकि मैं बहुत पढ़ता था, पांचजन्य पढ़ता था, पाठ्यक्रम पढ़ता था, तब तक और भी आरएसएस की जो किताबें हैं, सीताराम गोयल की, आपको ताजुब होगा कि मैं उस समय मैंने पीएन ओक की, पुरुषोत्तम नागेश ओक की कुछ किताबें पढ़ी। एक उसमें एक किताब थी जिसका नाम था ताजमहल तेजो महालय शिव मंदिर। फिर दूसरी किताब पढ़ी, उसका नाम था कृष्ण नीति है। तो ऐसी चीजें उस समय हम पढ़ने में आती थी, तो उन सब चीजों को पढ़ते थे, पांचजन्य पढ़ते थे, फिर वहां शाखा में सुनते थे, फिर और चीजें आती थी, तो मन में कुछ कुछ सवाल जब आते थे तो मैं जो भी आता था उनसे बातचीत करता था। तो मेरी छवि ऐसी बन गई कि एक बार मुझे कहा गया कि ये पार्ट आपका बहुत मजबूत है, सिर वाला, लेकिन थोड़ा बाकी का पार्ट जो है बॉडी का, उसको मजबूत करो। उनका कहने का मतलब ये था कि बौद्धिक चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देने के बजाय आपको शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दो, ये सब जो चीजें, क्योंकि सीधी सी बात ये कि सवाल करने की जरूरत नहीं है। तो सवालों के लिए वैसे भी वहां जगह होती नहीं है, आप अनौपचारिक रूप से बात कर सकते हैं। देखिए, शाखा का स्ट्रक्चर ये है कि मिनट टू मिनट प्रोग्राम है उसका। आप जब शाखा में घुसते हैं तब से लगा करके शाखा से बाहर निकलते हैं, उस 1 घंटे में कोई 1 सेकंड नहीं है जहां पर प्रश्न करने के लिए जगह हो। तो वहां प्रश्न करने की जगह नहीं है। आप जब रूट मार्च निकालते हैं तो वो तो पथ संचलन है, वो तो वैसे ही अपने आप में ही एक सैनिक मार्च पास्ट है, तो उसमें कोई समय नहीं है आपके प्रश्न करने का। जब उनके बड़े अधिकारी आते हैं, मान लिया सरसंघ चालक आए, कुछ और आए, और उन्होंने कोई बड़ा भाषण वाषण लगाया, तो वो मंच पे बैठते हैं, वो स्वयंसेवक नीचे बैठता है, तो वो इतनी दूरी है कि वो तब बात करने का मौका नहीं है। तो ये सारी जो चर्चाएं आप उठा सकते हैं, वो अनौपचारिक रूप से प्रचारकों के साथ, अधिकारियों के साथ, बौद्धिक प्रमुखों के साथ ऐसे उठा सकते हैं। लेकिन वो जो अनौपचारिक रूप से बार बार जो चीजें उठाई जाती थी, उनका भी उन सब लोगों को आपस में भान होता था। वो कन्वे रखते थे एक दूसरे को कि ये बंदा है जो फिजिकल चीजों में आगे जा रहा है, ये बंदा है जो मेंटल चीजों में जा रहा है। उनका पूरा एक वो सबके बारे में पूरा देखते थे कि क्या इसमें संभावना है, इसको कहाँ ले जा सकते हैं। शायद वो उनके दिमाग में चलता रहता होगा कि भाई ये कौन है जो बजरंग दल में जाके हुड़दंग मचा सकता है, कौन है जो लड़क सकता है, कौन है जो विश्व हिंदू परिषद में जाके कुछ कर सकता है, या कौन गोबर क्या गाय माता का वो करके और कुछ और गौशाला चला सकता है। तो हर एक व्यक्ति के बारे में वो शायद वहां सोचते रहते हैं, और बाद में उसकी जैसी क्षमता होती है वैसे उनके जो एक्सटेंशन काउंटर थे उसमें उसको ले जाके बिठा देते हैं कि ये तुम इसके लायक हो। तो मैं चूंकि पढ़ते रहता था, उसी समय में कविताएं लिखता था, तो मैं ये सब चीजें सवाल वाल उठाते रहता था। तो मेरा ये सवाल उठाने का काम तो लगभग शाखा में 1 साल रहते हुए ही शुरू हो चुका था। तो ये तो चलने लगा। तो मुझे एक्चुअली 2 इंसिडेंट्स है, जिसके बारे में आपसे बात करनी है, जिसने आपको दिखाया कि संघ का असली रूप क्या है और जिसके बारे में आप अनकंफर्टेबल थे। आप ये पहले भी लिखा हुआ है कई जगहों पे। तो पहला तो ये है कि आपने पूछा कि आपने रिक्वेस्ट किया कि आपको प्रमोशन दिया जाए, आप प्रचारक बना दिया जाए। और दूसरा ये एक बार हुआ कि आपने साधुओं के लिए कुछ खाना बनाया। तो दोनों समय ये क्या हुआ उसके बाद? एक समय ऐसा आया कि मैं इतना रंग गया इस रंग में कि मुझे लगा कि मुझे प्रचारक होना चाहिए, फुल टाइमर होना चाहिए आरएसएस का। और मैं मन से ये मानता था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और तब तक मैं एक दैनिक अखबार में कुछ एक स्तंभ भी लिखता था, राष्ट्र चिंतन। वो अखबार भी भाजपा के एक लीडर का था, वो बाद में विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हुए, अभी भी। तो मैंने एक बार उसमें लिखा, हिंदू, वो जो हमारा वाजपेयी जी की जो कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैं एक तरीके से और बाकी स्वयंसेवकों से ज्यादा तेज गति से हिंदुत्व में अंदर धंसा, अपने ही प्रयासों से। उन्होंने जितना सिखाया उतना तो सीखा ही मैंने, उससे कई गुना ज्यादा स्व अर्जित किया मैंने, पढ़ करके, ये वो करके। और मुझे लगता था कि मुझे प्रचारक होना चाहिए। तो मैंने जिला प्रचारक जो थे हमारे, उनको मैंने कहा कि भाई साहब, मैं पूर्णकालिक
प्रचारक होना चाहता हूँ। तो तब उन्होंने मुझे कहा, 2 तरह की बात थी वो। पहला बात तो उन्होंने ये कहा कि आप वंचित समुदाय से आते हैं और आप अभी तो बहुत उत्साह से प्रचारक निकल जाएँगे, लेकिन अगर किसी ने आपको पूछा अपने समाज के बारे में और आपने अपनी जाति बताई और उसकी वजह से अगर आपके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार हुआ जो आपको ठीक नहीं लगा, तो आप में नकारात्मकता आ जाएगी और आप फिर संघ के विरोध में बात करेंगे। तो इसलिए आप बेहतर ये होगा कि आप प्रचारक बनने के बजाय आप थोड़े दिनों के लिए विस्तारक बन जाएँ। तो ये एक चीज़ है जो शाखा मतलब जो लोग जाते हैं शाखाओं में और जो संघ के वो लोग होते हैं, वो 1-2 साल के लिए जाते हैं। प्रचारक जो होता है वो आजीवन के लिए बाहर निकलता है और वो जीवन भर प्रचारक रहता है। लेकिन ये जो विस्तारक होते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल अपना काम करके फिर लौट आते हैं, फिर गृहस्थ या अपना व्यावसायिक जो भी जीवन है वो जीते हैं। तो उनका ये था कि आप विस्तारक बन जाएँ। दूसरा उन्होंने जो कहा वो महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि हमें प्रचारक चाहिए, हमें विचारक नहीं चाहिए। तो उनका आशय ये था कि जो बात नागपुर से कही जा रही है, वो बात वैसी की वैसी नीचे तक कन्वे होनी चाहिए। उसमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। तो प्रचारक का मतलब ये है कि पूरा वैसा का वैसा लोगों के बीच जाए, न कि उसमें अपना समझ, अपना प्रश्न या अपना कोई संदेह वो करे। तो उन्होंने कहा कि हमें प्रचारक चाहिए, विचारक नहीं चाहिए। तो वो एक बार फिर से वो ही बात थी जो मेरे को पहले भी कही गई थी कि आप ऊपर अभी ये जो दिमाग वाला पार्ट है इसमें बहुत मजबूत है आप, लेकिन आप शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है। इसी को घुमा के दूसरे तरीके से उन्होंने कह दिया कि हमें प्रचारक चाहिए, विचारक नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ स्वयं की बुद्धि नहीं लगानी। आपको जो कुछ करना है वो बुद्धि कुछ लोग लगा चुके हैं या कुछ लोग लगा देते हैं वहाँ बैठ करके। वो जो आपको कह दे बस वो जो विचार दे दे उसी विचार को बिना कोई उसका कॉमा भी बदले हुए आपको एज़ इट इज़ नीचे तक ले जाना है। खैर ये प्रचारक वाला तो मुझे उन्होंने विस्तारक का कहा और मेरे को प्रचारक होना था तो वो तो फिर काम नहीं किया बात और वो वहीं खत्म हो गई। फिर तब तक ये राम मंदिर का बहुत बाबरी मस्जिद राम मंदिर का तेजी से फैल रहा था और मैं लगभग उसी समय आरएसएस में जाना शुरू हुआ 1987 में जब आरएसएस ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को अपना कोर मुद्दा बनाया। उसके पहले तक वो एक संपत्ति का छोटा सा विवाद था अयोध्या का, लेकिन तब उन्होंने अपने हाथ में इस मुद्दे को लिया और उसके बाद उसको आंदोलन छेड़ा। फिर वो मेरे शाखा में संघ में रहते हुए ही ताले खुले, पहला वाला शिलान्यास हुआ और 1990 की पहली कार सेवा हुई और उस कार सेवा में भी मुझे जाने का मौका मिला। हालाँकि मैं पहुँच नहीं पाया, मैं तो टुंडला रेलवे स्टेशन पे हमारा समूह गिरफ्तार हुआ और हमको फिर आगरा बहुउद्देशीय स्टेडियम में एक अस्थायी जेल थी उसमें रखा गया और 10 दिन बाद हम वहाँ से निकल कर के वापस आए। उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट ने बहुत वहाँ पर पुख्ता इंतज़ामात किए और उसकी वजह से वो हो नहीं पाया कार सेवा और गोलीबारी वगैरह हुई, उसमें काफ़ी लोग मारे गए। हम लोग लौटे और लौटने के बाद 1991 मार्च में एक नया मूवमेंट और खड़ा किया गया, मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो और इसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बड़े-बड़े जुलूस निकाले गए। तो ये जो हमारे यहाँ भी जुलूस निकाला गया, मुझे याद पड़ता है कि 12 मार्च 1991 था उस दिन, तब ये जुलूस निकलना था और जुलूस के निकलने का वक़्त और उसका जो रास्ता था, वो ऐसा था कि हमारे यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भीलवाड़ा में जो बस्ती है मतलब ये जो मुस्लिम बहुल जो पुराना भीलवाड़ा है जिसको गुल मंडी कहते हैं, वहाँ से उसको निकलना था जुलूस को और उसी में वहाँ की जो जामा मस्जिद आती है, वो भी उसी रास्ते में पड़ती है और जुलूस का वक़्त और दोपहर बाद की जो नमाज़ होती है, वो वक़्त लगभग समान था। तो प्रशासन को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नमाज़ी और ये जो लोग हैं जुलूस वाले आमने-सामने नहीं हो जाए। तो प्रशासन ने ये बातचीत कही कि आप रास्ता बदल दो या आप थोड़ा देरी से निकलो। लेकिन हम तो इतने उत्साहित थे
क्योंकि उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी राजस्थान में, और हमें लगा कि हमारी गवर्नमेंट है और हमारा देश है और हमको कौन रोकने वाला होगा। तो जुलूस वाले लोगों ने कहा कि क्या गुलमंडी पाकिस्तान में है कि हम उधर से नहीं जा सकते, हम जाएंगे और उधर से ही जाएंगे, इसी वक्त में जाएंगे। तो ये काफी जद्दोजहद चली, आध पौन घंटे आपस में बहसबाजी ये सब होने के बाद पीछे से किसी ने पथराव किया पुलिस पर, और पथराव के बाद उन्होंने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज से और स्थितियां बिगड़ी तो उन्होंने हवाई फायर किए, और हवाई फायर से भी बात नहीं बनी तो उन्होंने सीधे फायर किए, और उसमें 2 ऐसे लोग मारे गए जिसका कोई लेन देना इस आंदोलन से नहीं था या इस जुलूस से नहीं था। वो एक बंदा अपने घर में सोया हुआ था, रात में कहीं काम करता था, दिन में सोता था, तो वो बाहर कुछ हंगामा सुन के बाहर निकला और गेट से बाहर निकलते ही गोली लग गई, वो वहीं पे अपने दहलीज पे तो गिर पड़ा। और दूसरा व्यक्ति अपने गांव से आकर के और कुछ सामान खरीद के वापस जा रहा था, और वो पुलिस की गोलीबारी का शिकार हो गया। पर चूंकि दोनों मरने वाले जो थे वो हिंदू थे, और हिंदू थे तो उनको शहीद घोषित किया गया कि वो राम मंदिर के लिए शहीद हो गए, जबकि उनका लेन देना तो कुछ था नहीं, लेकिन बस हो गए शहीद। और इन शहीदों को, और वो अयोध्या में जो पहली कार सेवा में नवंबर दिसंबर में जो पुलिस गोली में मारे गए, इन सब के अस्थियों को अस्थि कलश बना करके और गांव गांव में घुमाया गया। तो ये अस्थि कलश मेरे गांव में भी आया, क्योंकि मैं अपने गांव से शाखा शुरू करके और धीरे धीरे बढ़ते हुए जिला हेडक्वार्टर पे जाके रहने लग गया था। और जिला हेडक्वार्टर पे जब मैं अंबेडकर छात्रावास में रहता था, तो मुझे वहां से निकाला गया ये कहते हुए कि यहाँ रहने से विचारधारा भ्रष्ट हो जाती है, तो आप संघ के कार्यालय में रहो। तो मैं जिला कार्यालय में रहता था और जिला कार्यालय प्रमुख था उन दिनों में, जब मैं कार सेवा में गया। तो फिर ये हुआ कि वहां पर ये अस्थि कलश जो आया, इसको जब गांवों में घुमाया गया, तो मैंने अपने गांव में ये इस अस्थि कलश यात्रा का बड़ा सत्कार करने का योजना बनाया। मुझे लगा कि मेरे को बहुत दिन हो गए गांव छोड़े हुए, शाखा वहां पर छोड़े हुए, तो मुझे वापस अपने गांव में एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए राम मंदिर के पक्ष में। तो वो कार्यक्रम हमने अपने गांव में किया। तो दिन भर की ये यात्रा रात में पहुंची 8-9 बजे के आसपास, और इनका भव्य स्वागत किया हम लोगों ने। और फिर साधु संत और ये सब लोग जो आए थे उन्होंने भाषण वाषण लगाए। अयोध्या में मारे गए लोगों का एक उस पर प्रोजेक्टर पर बाकायदा एक फिल्म दिखाई गई। और ये सब होने के बाद में लगभग 10 बजे के बाद जब कार्यक्रम खत्म हो गया, तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों के लिए हमने खाना बनाया है, क्योंकि जो कार्यक्रम का शेड्यूल था वो ऐसा था कि वो शाम मेरे यहीं कार्यक्रम का समापन होना था। तो मुझे था कि खाना तो उनको खाना ही पड़ेगा, दिन भर से चलते हुए आ रहे हैं। और चूंकि मैं शाखाओं में इधर उधर जब घूमता था, तो मुझे कभी लगा नहीं कि कोई ऐसी कोई भेदभाव जैसी बात है। तो हमने तो खाना बना दिया। तो खाना जब बना रहे थे, तो मेरे पिताजी ने फिर से उनका जो प्रतिरोध था वो दर्ज करवाया, और उन्होंने कहा मैं जानता हूँ ये लोग नहीं खाएंगे खाना, ये कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो मैंने कहा आपके ये सब कांग्रेस में जातिवादी चलती है, हमारे संघ में कोई जाति नहीं चलती, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग बराबर बैठ के खाते हैं, सब सबके घर में खाते हैं, मैं भी सबके यहाँ खाता हूँ, सब मेरे यहाँ खाते हैं। तो उनका ठीक है, अगर तुम्हारे पार्टी में ये बराबरी आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो बनाया खाना, खीर पूड़ी बनाई हमने उनके लिए। तो जैसे ही 10 बजे बाद मैंने ये कहा कि खाना तैयार है, आप खाना खा सकते हैं, तो मुझे सेवा भारती के जो जिला प्रमुख थे वो एक तरफ ले गए, मेरे कंधे पे हाथ रखा, और बहुत प्यार से उन्होंने कहा बंधु आप तो समझते हैं कि हमारा हिंदू समाज कितना विषम है, हम तो आपके साथ एक ही थाली में बैठ करके खाना खा सकते हैं, आप हमारे यहाँ खा सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ये जो साधु संत आए हैं इनको थोड़ा दिक्कत होगी, तो ऐसा कीजिए कि आप खाने को पैक करके दे दीजिए, हम आगे के गांव में उनको खिलाते हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा एकदम सदमे जैसा था, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आगे के गांव में उनको ये बताए बगैर कि एक दलित के घर से ये खाना आया है, उनको चुपचाप वो खिलाने वाले हैं। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं एकदम स्तब्ध था, लेकिन मेरे लिए ऐसा एक फंसने वाला सिचुएशन था कि मेरे पिताजी कह चुके थे, और न केवल एक बार कह चुके थे बल्कि वो हर बार कहते ही रहते हैं कि ये दोगले लोग हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। और खाना बन रहा था तब भी उन्होंने कहा कि ये खाएंगे नहीं, मैं कहता हूँ। और मैंने बहुत दावे के साथ कहा कि आप जानते नहीं संघ को, ये सब आपके पार्टी में होता, हमारे तो
होता नहीं है, हम तो सब एक साथ खाते हैं। तो मुझे लगा कि अब इस सिचुएशन से बचने का एक ही तरीका है कि खाना पैक करके उनको दे दिया जाए। तो जब खाना पैक कर रहे थे तो फिर फादर ने कहा, क्या हुआ? तो मैंने कहा उनको भगवानपुरा अगले गाँव में एक और कार्यक्रम करना है, अभी 10 सवा 10 बज रही है तो लेट हो रहे हैं, इसलिए वो ले जाएँगे और वो आगे खा लेंगे। तो शायद वो समझ गए होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, उनका ठीक है। और हमने उनको एक केतली में खीर भरा और एक पॉलिथीन में पूड़ी रखा और उनको दे दिया। और मैं सोचा कि मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, अगले गाँव में खा लेंगे वो लोग, क्या दिक्कत है? और यही सोच कर के मैं अपने गाँव में रह गया, वो लोग वहाँ चले गए। उस यात्रा में मेरा एक क्लास फेलो जो कविताएँ भी लिखता था और जो मेरी क्लास में भी था, हम एक ही शाखा में जाते थे भीलवाड़ा में। और मेरा जो अम्बेडकर छात्रावास में जब मैं रहता था, तो मेरा छात्रावास और उनका घर बिल्कुल पास-पास में था, तो वो पड़ोसी भी थे हमारे, पुरुषोत्तम शर्मा। तो पुरुषोत्तम दूसरे दिन मुझे खीर की केतली लौटाने के लिए आए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मना किया गया कि मैं आपको ना बताऊँ, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ से जो खाना ले गए थे, वो खाया नहीं गया। तो मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा वो खाना भगवानपुरा गाँव में घुसने से पहले मोड़ पर नीचे फेंक दिया गया। वहाँ जाकर के एक शर्मा जी के घर में रात में खाना बनवाया गया और 12 बजे खा कर के हम सोए। तो ये सुनना मेरे लिए बहुत-बहुत दुखदायी था। मुझे उस समय पहला ख़्याल ये आया कि मैं उनके लिए अयोध्या जाकर के मरने के लिए तैयार था और हो सकता है कि मैं पहुँचने में कामयाब रहता और मुलायम सिंह यादव की सरकार की पुलिस जो है वो गोलियाँ बरसाई, वो मेरे भी लग सकती थी। तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ उनके लिए और वो मेरे घर में खाना खाने के लिए तैयार नहीं। तो मैं कौन-सा हिंदू राष्ट्र बना रहा हूँ और इस हिंदू राष्ट्र में मेरी जगह कहाँ? ये पहला प्रश्न इस रूप में उस दिन मेरे दिमाग में आया। लेकिन मैं मानना बहुत मुश्किल था कि क्या उन्होंने फेंका उस खाने, या मुझे लगा वो मज़ाक कर रहा मेरा दोस्त। तो फिर हम साइकिल पर बैठ कर के गए, वो जगह पर जहाँ वो फेंका गया था और बाकायदा वो सारी चीज़ वहाँ पर जितना भी अवशेष बचा हुआ था, वो वहाँ हमने देखी और मैं घर नहीं लौटा बल्कि जहाँ पे यात्रा पहुँची वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँच कर के मैंने ये सवाल उठाया कि आपने ये ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अव्वल तो आपने खाया नहीं मेरे घर पे और यहाँ से पैक करवा के ले गए, आपने फेंक दिया रास्ते में। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ये पुरुषोत्तम जी हैं, ये ये आपके साथ थे ना, ये इनके सामने। जब उनको पता लगा कि हाँ, ये इनको पता लग गया है बंदे को, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं बात ऐसी नहीं है। वो तो जो लोग खाना लेकर के गाड़ी में, जीप में पीछे बैठे हुए थे, वो गाड़ी जब तेज़ी से टर्न पे मुड़ी, तो उनके हाथ से खाना छूट गया और छूट गया, सड़क पे गिर गया, तो फिर गिरे हुए खाने को कैसे खाएँ? ये सफ़ेद झूठ था क्योंकि 2 चीज़ें उनको दी गई थी। अगर पूड़ी छूट गई तो खीर बची रही होगी, खीर छूट गई तो पूड़ी बची रही। दोनों ही चीज़ें एक ही साथ गिर गई और एक साथ भी गिरी तो वो सड़क पे नहीं गिरी बल्कि सड़क से किनारे पे खड्डे में जाके कैसे गिर गई। और वो केतली गिरती अगर स्पीड में गाड़ी से तो उसमें भी कुछ मोच आनी थी, कुछ कुछ तो होना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बाकायदा गाड़ी रोकी और फेंका ये सब चीज़। तो फिर मेरे लिए वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था और मेरे लिए शायद जीवन में सब कुछ आरएसएस ही था उस समय। क्योंकि मैं तो जब समझ मेरी बनने लगी, मेरा अपना किशोरावस्था जो थी, मेरे अपने दोस्त थे वो भी शाखा के थे, मेरे जो टीचर थे वो भी शाखा के थे, मैं बाहर जिन लोगों को जानता था वो भी शाखा के थे, मैं जहाँ रहता था वो संघ का कार्यालय था। तो मेरा तो जीवन ही उनके इर्द-गिर्द था और अचानक ऐसा हुआ जैसे किसी ने उठा करके बाहर फेंक दिया मुझे और मुझे लगा अब क्या करना? अब कहाँ? किधर जाना है? क्या सोचना? तो अगला 1.5 साल मेरा आरएसएस से इस सवाल के जवाब के लिए बीता कि आपने मेरे साथ ये किया और मैंने सब जगहों पे उस समय चिट्ठियां लिखी, मैंने जो भी मिलता था उससे मेरी एक ही बात होती थी और मुझे ये समझाया जाता था कि बंधु ये बहुत छोटी सी बात है और मुझे लगता था कि ये छोटी बात कैसे है? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत छोटी बात थी और आज भी मुझे लगता है कि जब भी हम जातिगत उत्पीड़न की बात करते हैं, सामने वाले लोग कहते हैं इसमें क्या बात है? ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो ऐसी व्यवस्था है।
हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी का जिसमें सवाल है, हमारी गरिमा का जिसमें सवाल है, हमारी प्रतिष्ठा का जिसमें सवाल है, हमारे इंसान होने का जो प्राथमिक योग्यता है, उस पे सवाल है और आपको ये लगता है कि छोटी बात है। तो हर जगह से छोटी बात कहा जाता था और मुझे समझाया जाता था कि आप तो राष्ट्र निर्माण में लगो। मुझे लगता है कौन से राष्ट्र के निर्माण में लगूँ जहाँ पर मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही है और मेरे पूरे अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह है और मुझे कहा जा रहा है राष्ट्र निर्माण में लगो। और फिर धीरे-धीरे उन्होंने एक स्थापित कर लिया कि ये बंदा जो है ये पागल जैसा हो गया है और ये एक ही बात को रटते रहता है, बात करते रहता है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। उन्होंने डिनाई कर दिया पूरी चीज़ से कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये इनका मन से ही बनाया हुआ कहानी है और फिर धीरे-धीरे उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। फाइनली मैंने फिर एक अखबार में इस पूरे इंसिडेंट को लिखा और मैंने तय किया कि और उसका टाइटल था उस समय कि हिंदू धर्म के ठेकेदार चाहते हैं कि मैं हिंदू ना रहूं और ये कहते हुए मैंने एक तरीके से आरएसएस को पूरी तरीके से छोड़ दिया। लेकिन तब मुझे इतना बुरा लगा, इतना अकेलापन लगा कि इसी दरमियान में एक समय ऐसा भी आया कि एक रात मैंने चूहे मारने की दवा खा करके और मरने का फैसला किया और मैं मर तो नहीं पाया क्योंकि परिवार को पता चला, मेरे बड़े भाई ने उस समय जो वैद्य थे उनको बुलाया, फिर उन्होंने इलाज किया और वो चूहे की दवाओं में शायद मिश्रण मिलावट रही होगी कि वो भी ज़्यादा काम नहीं की, तो मैं बच गया। तो वो खबर पूरे गाँव में फैल गई, आस-पास फैल गई, रिश्तेदारों में फैल गई। मेरे लिए और शर्मिंदगी का कारण था कि उधर पूरा मित्रता जिनसे थी वो सब लोग छूट गए। दूसरा ये कि यहाँ घर से निकलना मुहाल हो गया, सबको लगता था कि ये आदमी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तब इतना ट्रेंड नहीं था, आजकल तो आत्महत्या बहुत सामान्य बात है। शायद उस समय लोग इतना ये सब नहीं करते थे। तो मेरे लिए वो बहुत ही और शर्मिंदगी का डबल शर्मिंदगी का कारण था। लेकिन उसी दरमियान मुझे ये भी लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? पहले तो मैं उनके प्रेम में पागल होकर के और मरने के लिए राम मंदिर के लिए अयोध्या चला गया। तब मैं उनके प्रेम में मर रहा था। अब जब वो मुझसे नफ़रत कर रहे हैं, तो फिर मैं चूहे मारने की दवा खा के मर रहा हूँ। यानी कि उनके प्रेम में मरूँ, उनकी नफ़रत में मरूँ। तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का निर्णय करने वाले ये लोग कौन हैं? और तब एक दूसरा दुनिया शुरू हुआ और फिर मेरे भीतर जो आरएसएस था, क्योंकि मैं आरएसएस से निकल गया था लेकिन आरएसएस मेरे अंदर था और फिर वो आरएसएस निकलना शुरू हुआ और अगले 5 साल लगे मुझे उससे लिबरेट होने में, क्योंकि मुझे किसी मुसलमान से दोस्ती मतलब उसको देखते ही मेरे अंदर जो जमा चीज़ें थी वही निकल-निकल के आती थी। मुझे जो पढ़ाया गया, समझाया गया, मेरा जो ब्रेन वॉश था, वो उसी तरीके से चलता था। तो थोड़ा मुश्किल रहा ये सफ़र। जी, तो मैं जी। उसमें रहा तो 5 साल लेकिन निकलने में मुझे ज़्यादा समय लगा। तो जब आरएसएस ये कहती है कि हम एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को साथ लेना चाहते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन है? देखिए पहली बात तो राष्ट्रीय हैं आप स्वयंसेवक संघ, तो राष्ट्र केवल अपर कास्ट हिंदू नहीं होता। राष्ट्र तो सब लोग हैं इस राष्ट्र का हिस्सा। यहाँ जो भी व्यक्ति जिस भी तरह का व्यक्ति है, चाहे वो मेजॉरिटी पीपल है, चाहे माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी चाहे रिलीजियस है, चाहे लिंग्विस्टिक है, तमाम लोग, तमाम जातियाँ, तमाम धर्म, तमाम जेंडर के लोग, सब राष्ट्र का हिस्सा है। और केवल लोग ही राष्ट्र नहीं है, यहाँ के पशु-पक्षी, यहाँ का जल, जंगल, ज़मीन सब कुछ राष्ट्र है। तो उनका राष्ट्र का जो राष्ट्रीय वाली बात है उसमें क्या इंक्लूसिवनेस आपको लगती है? सबसे बड़ी बात तो वो अपने ही धर्म की 50% जो आबादी है औरतों की, उसको उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, उनको एक्सक्लूड रखते हैं। इसके अलावा हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको आप शामिल नहीं करते हैं। तो इंक्लूसिवनेस का तो प्रश्न ही नहीं है और मुझे लगता है कि न तो वैदिक सनातनी ब्राह्मण परंपरा में इंक्लूसिव जैसी कोई बात है और न ही इनमें। ये सारे एक्सक्लूजन ढूंढते हैं। किन किन चीजों में निषेध किया जा सकता है, क्या क्या चीजें हैं कि भीतर ना आ सके, घर के भीतर ना आ सके, रसोई के भीतर ना आ सके, मंदिर के भीतर ना आ सके, हमारे धर्म के भीतर ना आ सके। वैसी ही निषेधाज्ञाएं आरएसएस में भी है। महिलाएं हैं तो नहीं आएगी, दूसरे धर्म के लोग हैं तो नहीं आएंगे,
दलित आदिवासी हैं तो एक एक लेवल तक आएंगे, फिर आगे नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए आरएसएस किसी भी रूप में उसका समावेशी दृष्टिकोण नहीं है। वो कितनी ही बात करें इंक्लूसिवनेस की, उनका कोई इंक्लूजन नहीं है, वो एक्सक्लूजन है वहाँ पूरी तरीके से। हाँ, वो लोगों को लेते हैं टोकन के रूप में, दिखाने के रूप में, ये दिखाने के रूप में कि ये वो लोग हैं, हम सब लोगों को एक साथ रखते हैं। वो तो राम मंदिर की शिलान्यास हुआ तो कामेश्वर चौपाल को उन्होंने उसमें बुलाया था। बाद में अभी जो बना इनका ये जो ट्रस्ट बना उसमें भी कामेश्वर चौपाल को रखा। लेकिन जब मैनेजिंग ट्रस्टी बनाना हुआ तो दलित को नहीं बनाते हैं ना, तब तो आप संपत राय कौन है उनको बनाते हैं। तब आप भरोसा किस पे करते हैं? तो अगर इतना ही इंक्लूसिव संगठन है तो वो बता सकते हैं कि उनकी जो नेशनल जो कार्यकारिणी है उसमें कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। उनके जो 7 सरसंघ चालक हुए उसमें इन वर्गों से कितने सरसंघ चालक बनाए हैं और अगले 50 साल में बनाने की भी कोई संभावना है क्या? तो मेरा ये मानना है कि जब आप बिल्कुल अपनी ही आधी आबादी को साथ नहीं ले रहे हैं, अपनी 1/4 आबादी दलित आदिवासी के साथ नहीं ले रहे हैं और हमारा जो इतना परसेंट जो माइनॉरिटी है उसको साथ में ले रहे हैं, तो फिर ये बिल्कुल फर्जी दावा है। जी, एक्चुअली अब मेरे 2-3 सवाल इसी पे थे, और आदिवासी, दलित पे, औरतों पे, तो आपने एक साथ ही सवाल दे दिए। तो मुझे बाबरी मस्जिद जब टूटी उसके बारे में और भी एक सवाल है कि जब टूटी, तो आप कहाँ थे और आपके मन में क्या विचार है? पहली बात तो बाबरी मस्जिद टूटी नहीं, तोड़ी गई, क्योंकि ये अलग चीज है कि किसी दिन उसका भी फैसला आएगा तो ये कहेंगे कि वो अपने आप ही गिर गई थी। क्योंकि पहली कार सेवा में तो मैं शामिल था, मैं तोड़ना चाहता था और मौका मिलता तो शायद मैं वो करता। लेकिन दूसरी कार सेवा होने से पहले ही मैं टूट गया उधर से और मैं बाहर, और मैं उन दिनों में अपना संघर्ष कर रहा था, अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रहा था। तो मुझे याद है कि जिस दिन ये हुआ उस दिन मैं अम्बेडकर छात्रावास में उस रात रुका था, 5 दिसंबर की रात को, और 6 दिसंबर की सुबह रेडियो पर दिन में हमने ये सुना कि बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया है। और मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, खुशी की, दुख की, किसी भी प्रकार की। जबकि इतने साल तक मैं ये सोचते हुए आगे बढ़ा कि ये गुलामी का प्रतीक है और इस ढांचे को नष्ट करना है। पहली कार सेवा में जब मैं गया तो मुझे लगा कि हम देश की दूसरी आजादी की जंग लड़ने जा रहे हैं, हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, उस भाव के साथ थे। ये गाना गाते हुए गए कि राम के नाम पे जो मर जाएंगे दुनिया में अपना नाम अमर कर जाएंगे। बिल्कुल फिदायनी, बिल्कुल आत्म बलिदानी दस्ते की तरह गए। लेकिन जब ये हो गया तो उस दिन मुझ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुझे न खुशी हो रही थी न दुख हो रहा था। दुख इसलिए नहीं हो रहा था कि मेरे अंदर जो जमा था मुस्लिम द्वेष, वो जमा था तब भी, और आरएसएस छूटा नहीं था पूरा। और खुशी इसलिए नहीं हो रही थी कि वो सवाल था कि मेरा मेरा फिर क्या जगह है। राम मंदिर मान लिया बन भी गया, बाबरी मस्जिद टूट भी गई, तो मैं कहाँ हूँ, मेरी औकात क्या है? तो मैं भीलवाड़ा सिटी में था उस दिन, छात्रावास से निकला, मैंने शहर में देखा कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है जहाँ अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है और जहाँ पर सीरत सराय है और मस्जिद है, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस मस्जिद के आसपास के इलाके में फैली हुई है। और उससे बमुश्किल 20 कदम आगे जो सदर बाजार शुरू होता है उसमें हर्ष और उल्लास का माहौल और पटाखे और मिठाइयाँ बाँटी जाना और ये सब चीज़ें ढोल धमाके बज रहे थे। तो एक तरफ सन्नाटा था मुस्लिम बस्ती में, एक तरफ पूरा जश्न था, और इन दोनों के बीच में मैं कहीं था और मैं अपने आप को ढूँढ रहा था कि मैं कहाँ हूँ? मैं ना जश्न में हूँ और ना ही सन्नाटे के बीच में। तो 6 दिसंबर 1992 का जो दिन था, न मेरे लिए शौर्य दिवस था और न ही काला दिवस था। और वो दिन था जो बाबा साहब की निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि किसका निर्माण मनाना है और क्या मनाना है। तो मैं बस एक एक साक्षी और एक दृष्टा की तरह उस बहते हुए पानी को किनारे से देखने वाले व्यक्ति के रूप में मौजूद था।
मेरी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं। जी, आरएसएस छोड़ने के बाद आपका सफर क्या रहा? आरएसएस छोड़ने के बाद बहुत विकट सा सफर रहा, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर लगा कि ऐसे कैसे छोड़ दिया, थोड़ा सबक सिखा के छोड़ना था। लेकिन अब मैं अकेला क्या सबक सिखा सकता था इतने लोगों को? तो मैं उनको जो चिढ़ा सकता था वो सब काम मैं किया। तो मैंने सबसे पहले तो मेरे जैसे और जो छोड़े हुए लोग थे, उन सबके साथ मिलकर के एक विद्यार्थी अधिकार रक्षक संघ बनाया हम लोगों ने, जो एबीवीपी को एक तरीके से टक्कर देने के लिए। और उसके ज़रिए खूब सारे संघर्ष हमने किए और कॉलेज की जो राजनीति थी उसमें कब्ज़ा हमारे विद्यार्थी अधिकार रक्षक संघ का रखा। तो एक तरीके से वहाँ पर हमने उनको चुनौती दी। निजी जीवन में मैं ये सोचता था कि क्या और किया जा सकता है, तो उस समय मैं बहुत ये पढ़ता था कि मंडल कमीशन ला करके, और जो हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उन्होंने वो जयचंद की औलाद थे और उन्होंने हिंदू समाज को बाँटने का काम किया, गद्दार ये वो सब चीज़ें। तो मुझे लगा कि ये शायद उनसे चिढ़ते हैं, जनता दल वालों से। तो मैं थोड़ा जनता दल की राजनीति में घुसा और उस समय रामविलास पासवान की दलित सेना वलित सेना इसमें और ये सब किया, लेकिन मुझे लगा इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो फिर मुझे लगा कि क्या मैं कन्वर्ट कर लूँ अपने आप को, अगर मैं हिंदू ही ना रहूँ, तो ज़रूर इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इससे तो ये बहुत खफ़ा होते हैं। तो जब मैं कन्वर्जन का सोचा तो मेरे अंदर का जो मुस्लिम के प्रति जो नफ़रत था वो उसने मुसल इस्लाम के प्रति तो सोचने भी नहीं दिया, वो सोचा नहीं मैंने। जेएनयू को लेके मेरा ये सोच था कि ये बनिए हैं, ये सब आरएसएस में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें जाने में। बुद्धिस्टों को मैं जानता नहीं था उस समय तक, मेरे दूर-दूर तक कोई बौद्ध मेरे संपर्क में नहीं था, और ऐसा कोई अम्बेडकराइट भी नहीं संपर्क में था जो बुद्धिस्ट हो। और फिर मुझे लगा कि मुझे क्रिश्चियन बनना चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत चिढ़ते हैं। तो आस-पास क्रिश्चियन भी नहीं थे, लेकिन भीलवाड़ा में जहाँ मैं पहले हॉस्टल में रहता था, उसी गली में थोड़ा आगे जा कर के एक पेंटिकॉस्टल चर्च था, तो मैं उनके पास गया और उनको जाके अपना पूरा कहानी सुनाया कि मैं कैसे आरएसएस में था, फिर मैंने उनसे नाराज़ हो गया, ये हो गया मेरे साथ और मैं छोड़ दिया उनको। अब मैं सबक सिखाना चाहता हूँ उनको और मैं ईसाई बनना। तो शायद वो पास्टर को पहला आदमी ऐसा मिला होगा जो सुओ मोटो आ गया खुद ही चल के और ऐसे सारी चीज़ कह रहा था। तो उनको डाउट हो गया, उनको लगा ये आरएसएस का ही कोई प्लांट किया हुआ जासूस है और ये हमको ऐसे ही कुछ बेवकूफ़ बना रहा है। तो उन्होंने मुझको एक बहुत छोटे अक्षरों का न्यू टेस्टामेंट पकड़ाया और मुझे कहा इसको पढ़ना और रविवार की प्रार्थना में आना, ईसा मसीह तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देंगे और क्षमा करना सीखो। तो मैंने कहा मुझे क्षमा-वमा नहीं करना है, मुझे तो बदला लेना है। तो क्षमा करना मेरा काम नहीं है, मैं ये करना चाहता हूँ, उनको ये सब चिढ़ाना चाहता हूँ। तो उनको ये पक्का लग गया है कि ये जो बंदा है ये आरएसएस का बंदा है, और उन्होंने मेरे एक रिश्तेदार जो थे, उनको वो जानते थे, उनको उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक रिश्तेदार ईसाई बनना चाहता है। तो उस रिश्तेदार के थ्रू मेरे घर तक बात पहुँची। अगला रविवार आने से पहले तो मेरे घर में पहुँच गई बात कि मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी को ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये इसमें गया वो सब तो ठीक था, ये सब और हुआ, ये आत्महत्या की कोशिश और इधर-उधर सब कुछ हो गया, लेकिन अब ये क्रिश्चियन और बच जाएगा। तो तब उनका एक रौद्र रूप सामने आया और उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से मेरा एक तरीके से सब चीज़ों से एक घर में उन्होंने बिठा दिया है कि कहीं नहीं जाना। लेकिन मैं घर में बैठने वाला तो था नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में चढ़ गया क्रिश्चियन बनना है, तो बनना ही है। तो रेडियो पर वो आते थे, पता नहीं यीशु बुलाता है, ऐसे कुछ-कुछ कार्यक्रम चलते हैं, तो वो कार्यक्रम सुनता मैं और फिर उनको चिट्ठियाँ लिखता था। तो बहुत सारा साहित्य आने लगा, एक बार कैलिफ़ोर्निया से कोई साहित्य आ गया, कितनी सारी किताबें भर के, तो मैं वो सब करने लगा। और इसी दरमियान मैंने सुना कि मेरे इलाके के एक ब्राह्मण टीचर ने वो कन्वर्ट हो गया, उनका नाम हरिनारायण था, वो एच न्यूमैन हो गए। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखा कि मैं ऐसे होना चाहता हूँ। तो वो चूँकि मेरे गाँव से उनका जो इलाका था वो बहुत नज़दीक में था, 30 किलोमीटर पे, तो वो एक बार अपना
एलएमएल वेस्पा स्कूटर लेके आए और मुझसे अपने गांव में मिले और उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया कि ये जोधपुर में सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च है और उसके पास्टर है पीएम लाल, परवेज मसीह लाल, आप इनको चिट्ठी लिखिए। तो मैंने पास्टर पीएम लाल को चिट्ठी लिखी और फिर मैंने देखा कि अचानक एक दिन पीएम लाल मेरे घर पहुंच गए और उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं उनके साथ जोधपुर चला गया और जोधपुर में रह करके मैंने 3-4 महीने तक बाइबिल पढ़ी उनके साथ। तो मेरा मूल मकसद तो कुछ था आरएसएस वाला और वो उधर बाइबिल पढ़ाए जा रहे हैं, एक किताब से दूसरी किताब और वो सब चीजें, प्रार्थना करना सिखाना, क्षमा करना सिखाना। अभी मेरे तो क्षमा का कोई भाव ही नहीं है, मेरे अंदर तो पूरा बदला लेने का भाव और वो मुझे कह रहे हैं सबसे बात। फिर उन्होंने उनको लगा कि बाइबिल वाइबिल सब पढ़ लिया तो अभी बपतिस्मा करना है, तो वो फिर बैप्टिज्म के लिए उन्होंने एक दिन ऐसा किया कि वो पानी के टैंक के पास ले जा करके मुझे उसमें डुबोया, फिर सफेद कपड़े में बाहर निकाला और उन्होंने कहा बोर्न अगेन हो गया ये। मैंने सोचा ये क्या बोर्न अगेन हो गया, मैं तो अपने खेत पे जो कुएं की पानी का जो बना हुआ वो है टंकी, उसमें तो हर दिन ही जब होते थे तो इसी पानी में डुबकी लगाते थे, दिन बाहर निकलते थे तो इस पानी में नीचे पानी में डूब के वापस निकलने से क्या बोर्न अगेन हो गया। लेकिन चलो वो सब हुआ, लेकिन फाइनली मुझे लगा कि ये मेरा रास्ता नहीं, ये रास्ता तो कुछ है नहीं। फिर मैं गांव लौट गया 6 महीने बाद। वहां तो वहां एक कैथोलिक पास्टर जो एक युवा फादर थे, फादर अरुण जॉन एर्नाकुलम के, उनसे मेरी मुलाकात हो गई, आसीन में हो रहते थे तो थोड़ा दिन उनके साथ भी कुछ चीजें करी और फाइनली मुझे लगा कि कहाँ के लिए निकले और कहाँ पहुंच गए। मेरा तो मकसद कुछ और था, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो अंत में एक और लेख लिखा मैंने, मसीह मंजूर मसीहत नामंजूर, और मैंने उनको भी अलविदा कहा और फिर थोड़ा उधर दलित सेना के जरिए रामविलास पासवान के साथ थोड़ा और सक्रिय रहे, लेकिन धीरे धीरे लगा कि वो भी दलितों के राजा है और बात दलित की करना और बिल्कुल ही एक अलग जीवन और कोई लेना देना नहीं अम्बेडकर वगैरह वगैरह। तो वहां से भी एक तरह का मोहभंग हुआ और फिर मैंने एक और आर्टिकल लिखा, रामविलास या भोग विलास, और इससे वो बहुत नाराज हो गए। उनकी दलित सेना के जो हमारे मोहम्मद सईद फारूकी थे प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने मेरे को दलित सेना से निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ठीक है, फेंक दिया उन्होंने, लेकिन दलित सेना में रहते हुए मुझे अम्बेडकर को पढ़ने का मौका मिला और फिर अम्बेडकर के जरिए फुले, पेरियार, इन सब लोगों को और भी जो पूरी ये विचारधारा है उसको पढ़ने का मौका मिला और तब मुझे लगा कि ये जो मैं व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा हूँ बदला लेने की, या मेरे साथ जो हुआ, ये तो मेरे समुदाय के हर व्यक्ति के साथ हो रहा है और मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसे तो करोड़ों लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है और मैं अकेला एक किससे बदला लूंगा, उससे काम चल नहीं सकता है। ये तो एक बड़ा काम है और ये परिवर्तन का काम है। एक व्यवस्था परिवर्तित होगी तो शायद कुछ बनेगा। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरा व्यक्तिगत बदला लेने का अभियान था, उसको बदलाव के एक मिशन के रूप में परिवर्तित करने का काम अंबेडकर थॉट ने किया और फिर एक रास्ता मिला कि मुझे इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। और तब तक ये भी समझ में आया कि धर्मों में कोई मुक्ति नहीं है, शायद धर्मों से मुक्त हो जाने में मुक्ति होगी हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि एक खाई से निकलो कुएं में गिर जाओ, कुएं से निकलो किसी और में गिर जाओ, उससे कुछ होना नहीं। तो वो भी एक क्लैरिटी आई, काम को लेकर के भी क्लैरिटी आई और फिर धीरे धीरे मैं इन सब चीजों में बढ़ा आगे कि मुझे सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करना है। तो ये फिर दिशा फिर जर्नलिज्म की तरफ ले गई, फिर जर्नलिज्म से एक्टिविज्म की तरफ ले गई और फिर मैं कई लोगों से मिला। फिर मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन में 13 साल तक फुल टाइमर था, आरटीआई मूवमेंट के साथ, मनरेगा के पूरे आंदोलन के साथ, और उसी दरमियान मेरी सक्रियता पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के साथ हुई, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और अब मेरा जो
पूरा काम है वो दलितों, आदिवासियों, घुमंतुओं, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के और ट्रांसजेंडर के और वो जो तमाम जो मानवाधिकार के मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पर काम करते हुए भी। जी। तो आपको किताब लिखने का आइडिया कभी आया? कब सोचा कि अभी कि ये किताब लिखेंगे? और मेरा एक तो जुड़े हुए सवाल भी है कि जब लिखी किताब और जब रिलीज़ हुई तो कुछ ऑपोज़िशन हुआ, आपके खिलाफ कुछ टारगेटिंग हुई और रिस्पॉन्स क्या रहा किताब का बोथ यहाँ भारत में भी और बाहर? किताब लिखने का आइडिया तो आया मेरा 2002 में जब गुजरात जेनोसाइड हुआ और मुझे वो मौका मिला जो तीस्ता सीतलवाद और उनके साथियों ने एक जो रिटायर्ड जजेस थे, जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में एक कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल बनाया और मैं वॉलंटियर करने के लिए गया वहां पर उस ट्रिब्यूनल को जो गवाह लोग आ रहे थे उनके बयान वगैरह लिखने के लिए और मुझे याद है मैं कर्णावती क्लब में ये सारा सुनवाई चला और तीस्ता सीतलवाद जिस स्पिरिट के साथ, जिस हिम्मत के साथ और जिस जज्बे के साथ उस समय पीड़ितों को वहां ला करके और बयान करवा रही थी, वो वैसा जज्बा मैंने बहुत कम लोगों में देखा क्योंकि मैं जिस रेलवे स्टेशन से उतर करके और कर्णावती क्लब पहुंचा तो कालूपुर रेलवे स्टेशन से गुजरते वक्त हमारी गाड़ी के ड्राइवर ने हमें कहा कि ये बॉर्डर एरिया है, मतलब कालूपुर चूंकि मुस्लिम आबादी वाला इलाका तो उसका ये कहना था कि बॉर्डर इलाका है और मुझे समझ में नहीं आया कि बॉर्डर यहाँ इतना नजदीक कैसे है, बॉर्डर तो पाकिस्तान का है, सरहद तो वहां होती है, लेकिन वहां सरहद का मतलब था कि जो मुस्लिम इलाका है वो सरहद है, तो हिंदू इलाका, मुस्लिम इलाका ऐसे बटा हुआ इलाका और एक पूरा दुख में डूबा हुआ इलाका जहाँ दुकानें जली हुई और आपको उस कालूपुर से गुजरते हुए लगता था कि दुख क्या होता है वहां और फिर दूसरी तरफ कर्नावती क्लब पहुंच करके मैंने ये देखा कि उसी क्लब में एक तरफ स्विमिंग पूल में वहां का जो गुजराती जो मध्यम वर्ग है, खासतौर पे जो अपर कास्ट रिच हिंदू हैं, वो जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं है और उसी कर्नावती क्लब के एक हॉल में लोग रो रो करके अपनी कहानियां कह रहे हैं कि किस तरीके से उनको मारा गया, उनके पड़ोसियों ने उन पर पूरे के पूरे गैस के बाटले फेंके, पूरा परिवार नष्ट हो गया, लोगों को सैकड़ों की तादाद में मार करके किसी कुएं में डाल दिया गया या महिलाओं ने जब ये कहा कि हमारे साथ बलात्कार हुआ, ये सब जब सुना और मैं वो सुन रहा था और खिड़की से वो भी नजर आ रहा था कि लोग लोग जश्न में डूबे हुए, तो दो दुनिया दो देश वहां पर थे, जहां एक तरफ महान दुख में डूबा हुआ देश है और दूसरी तरफ जिनको कोई परवाह नहीं है, ये सब कुछ करके एक तरीके से अट्टहास करने वाला हिंसक समाज, उसको भी वहां देखने का मौका मिला। तो मैं गया तो ट्रिब्यूनल के में कुछ लिखने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा और रुके रहा और फिर मैंने जो कैंप्स थे, रिलीफ कैंप, उनके साथ थोड़ा काम किया और उसी दरमियान मुझे ये जो जाफरी और जकिया जोहर और ये सब लोगों से भी मिलने का मौका मिला। ये जो जुहापुरा वाली शाह आलम कैंप में जाने का भी मौका मिला। तो बहुत नजदीक से मैंने उस पीड़ा को महसूस किया कि आखिर हुआ क्या और फिर और भी जगहों से जो अहमदाबाद के अलग अलग जगहों पे जो हुआ उन सबको भी सुनने का मौका मिला। तो और फिर वहाँ एक बस्ती हमने साबरमती के किनारे देखी, राम रहीम नगर, जिसमें 60% मुस्लिम रहते हैं और 40% हिंदू और ये सारे के सारे मजदूर लोग थे जो अलग अलग मिलों में काम करते थे, उनका ये बस्ती था और वहां जाके पता चला कि वो एक ऐसी बस्ती थी जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई क्योंकि दोनों तरफ के लोगों ने अपने सारे गेट जिससे घुस सकते थे उपद्रवी, उन पर वो खड़े हो गए और उन्होंने उनको नहीं घुसने दिया अंदर। ये 60% जो मुस्लिम थे, इन्होंने अपने 40% हिंदू और बाकी लोगों की रक्षा करी और बहुत ही भाईचारे का एक व्यवहार था, उस पर मैंने लिखा भी बाद में। तो वो जब मैं वो सारे नरसंहार की विवरण लिख रहा था और जब मैंने ये राम रहीम नगर भी देखा और बाद में फिर मैं कहीं और लोगों से भी मिला, तब मुझे लगा कि ये जो कुछ हमको सिखाया जा रहा था में ये यहाँ पर होता हुआ मैं देख रहा था और वो कितना भयानक हो सकता है और
2002 में मैंने सोचा है कि मैं अपनी आज जो आरएसएस के साथ जर्नी है उसको लिखूंगा। लेकिन कुछ कारण थे कि मैं लिखना शुरू किया, एक दो पेज लिखे फिर छोड़ दिया, ऐसे ही चलता रहा। 2011 के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे फिर लिखना चाहिए। जब ये अन्ना आंदोलन चला और मैं जन लोकपाल के साथ जो मेरे डिसएग्रीमेंट थे उनको मैं उजागर कर रहा था, तब फिर मैंने कोशिश करी लिखने की, लेकिन उस समय मैं दूसरी और चीजें एक सीरीज लिख करके और फिर वो रह गया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, और तब मुझे लगा कि मुझे 2002 में लिखना था, नहीं लिखा मैंने, चुप रहा। 2011 में मैं लिखने की सोचा और चुप रहा। मुझे अपनी कहानी कहनी चाहिए कि मेरा क्या अनुभव है वहां पर। और अंततः फिर मैंने 2014 में सोशल मीडिया पर इस पूरी कहानी को लिखा। तो फेसबुक पर मैंने 54 एपिसोड लिखे। हर दिन मैं उस पर लिख रहा था और लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी, तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया थी। और उसी में हिंदी के एक बड़े प्रकाशन ने के जो एडिटर जो थे, डायरेक्टर थे, एडिटर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये सारी पोस्ट मुझे भेज दीजिए। और वो मैंने प्रिंट करके और उनको थोड़ा सुधार करके उनको भेज दिया। उनका ये इरादा था कि हम किताब बनाएंगे। तब तक चुनाव के रिजल्ट आ गए मोदी जी के, और सरकार आ गई मोदी की। और सरकार आने के साथ ही वो प्रकाशक महोदय जो थे वो तो एक तरीके से सदमे में चले गए, और उन्होंने तय किया कि ये किताब हमारे यहाँ से नहीं छपेगी। लेकिन इस बात को उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। मुझे कहते रहे कि हाँ चल रहा है, काम चल रहा है। और फिर उन्होंने काफी सारा समय निकाल दिया, 14, 15, 16, 17, 18 में फिर मुझे हिंदी के एक प्रकाशक, नवारुण प्रकाशक के संजय जोशी जी ने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आपकी हम किताब छापना चाहेंगे, अगर वो पांडुलिपि आप हमको देंगे तो तब मैंने उन प्रकाशक महोदय से कहा, और उन्होंने कहा हाँ आप किसी और को दे सकते हैं, हम तो शायद नहीं छाप पाएंगे क्योंकि अब तो इनका राज आ गया है। और दरअसल वो अपने बिजनेस को लेकर के चिंतित थे, और मुझे भी लगा कि ठीक है, मैं क्यों अपने बात कहने के लिए किसी को भी, किसी के जीवन को या बिजनेस को खतरे में डालूं। तो मैंने उसकी पांडुलिपि ली वापस, और मैंने अपने इन प्रकाशक महोदय को दी, और इन्होंने पढ़ा उसको, और ये इंटरेस्टेड थे कि इसको छापा जाए। तो फिर 2018-19 में ये किताब हिंदी में पहली बार छप के आई। और जब छप के आई तो क्योंकि इसका बहुत प्रचार हुआ सोशल मीडिया पर, और ये किताब सर्वाधिक उन युवाओं ने ली, दलितों और आदिवासियों ने और अल्पसंख्यक युवाओं ने। और मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि एक गांव में एक दो दलित परिवार में से पढ़ा हुआ एक छोटी उम्र का 18 साल, 20 साल, 25 साल का युवा उस किताब के साथ अपना सेल्फी लेकर के और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था, फेसबुक पे, कि ये किताब हमको मिली है, आरएसएस का असली चेहरा ये। तो इस तरीके से किताब का एक वेलकम हुआ। दूसरी तरफ आरएसएस ने प्रतिक्रिया करी, और मुझे खबर मिली कि हमारे शहर के जिस एक किताब विक्रेता के पास ये किताबें गई, यानी उस स्टोर से ही उन्होंने किताबें खत्म कर दी। और मुझे ये भी पता चला कि उनके एक पार्षद ने, जो दलित था और हिंदुत्व का चेहरा था आरएसएस का, बजरंग दल का, उसके नेतृत्व में उन्होंने तय किया कि इन किताबों की होली जलाएंगे हम और इसका विरोध करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि अचानक उनका ये डिसीजन हुआ आरएसएस के ऑफिस में कि हमें इस किताब पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने प्रतिक्रिया करी तो इस किताब का प्रचार होगा, लोग जानेंगे, और अगर जानेंगे तो ये सवाल बड़ा होगा, तो इस पर बोलना ही नहीं है। और आपको ताज्जुब होगा कि हिंदी किताब पर आरएसएस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, एकदम चुप्पी, एकदम सन्नाटा। बाद में मुझे एक उनके स्वयंसेवक मिलने के लिए आए, जो अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने किताब अमेजोन से मंगा ली, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे इतना उसके बारे में पढ़ रहे थे कि उनका रुका नहीं गया।
लेकिन उस किताब को मंगा करके उन्होंने उसको खोला नहीं, कई दिन पड़ी रखी, क्योंकि उनका अंदर का स्वयंसेवक तो कहता था कि मत पढ़, और उनका वो जो सोशल मीडिया पे एक्टिव जो वो था मन, वो कहता था कि पढ़। तो वो बड़े कसम-कस में चले। बाद में उन्होंने अपने जिला सरसंघचालक को फ़ोन करके कहा कि भाई साहब ये किताब लिखी और इनके बारे में आपका क्या ख़्याल? तो उन्होंने ये कहा कि मैं पुरी में जो संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक है उसके लिए जा रहा हूँ, और वो मेरे लिए कहा कि वो संघ के बहुत अच्छे स्वयंसेवक रहे हैं, आजकल हमसे नाराज़ चल रहे हैं और मैं वापस लौट के आपसे बात करूँगा। ये कह कर के उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो ये जो बंदा जो उस किताब को छूने से भी डर रहा था, इसने किताब खोली, पढ़ी, और उसमें से कई सारे उसके डाउट थे, उसको उसने लिखा, और उसने फिर मेरे से संपर्क किया कि क्या मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ? और मैंने कहा हाँ, मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। संघ चाहे तो मैं उनके नागपुर ऑफिस में जाकर के सरसंघ चालक से बात करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा आपका स्वागत है, आप आइए, बात करते हैं। और वो एक दिन आए, फिर आकर के उन्होंने आधा दिन मेरे साथ गुजारा, उनके तमाम सवालों का मैंने जवाब दिया, दोपहर का खाना हमने साथ खाया। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं किताब पढ़ता नहीं, लेकिन जब भाई साहब ने मुझे ये कहा कि वो अपने बहुत अच्छे स्वयंसेवक रहे और आजकल नाराज चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि तब तो आपकी किताब पढ़ी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि संघ के बहुत लोगों ने किताब पढ़ी, लेकिन उन्होंने रणनीतिक रूप से उस पर चुप्पी रखी, और ये चुप्पी अभी भी बरकरार है। तो ये इससे पहले जो कुछ चीजें मैंने लिखी उन पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई। जैसे 2005 में फांसीवाद की आहटें मेरी एक जो किताब थी, वो छोटी सी किताब थी जो 32 पेज की। वो एक दंगे के का एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन था। उस पर उन्होंने इतनी भयंकर प्रतिक्रिया करी कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, मेरे को मारने के लिए घर पहुंचे, मुझे 6 महीने के लिए भूमिगत रहना पड़ा। एनएचआरसी में प्रशांत भूषण ने मेरे पक्ष में एक केस फाइल किया, एनएचआरसी ने दखल दिया, तब जाकर के वो केस इस तरीके से वापस हुआ। तो एक 32 पेज की छोटी सी किताब पर उनकी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया थी, लेकिन 2018 में जो किताब आई, उस किताब पर उन्होंने मौन साध लिया, और उनका मौन अभी तक नहीं टूटा है। जबकि किताब अंग्रेजी में आ गई, किताब तमिल में आ गई, मराठी में आ गई, मलयालम में आ गई, और कुछ भाषाओं में अभी अनुवाद चल रहा है। लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से ये तय कर लिया कि जैसे उन्होंने मेरे लिए वो तय किया कि मेरे साथ वैसा कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ। अब उन्होंने तय कर लिया कि ऐसा कोई लेखक ही नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, ऐसी कोई किताब ही नहीं लिखी गई। तो फुली उपेक्षित। तो अभी उनका उपेक्षा का भाव जारी है। जी, और मैं सुनने वालों को बता दूँ कि मैं शो नोट्स में आपकी किताब है, उसका लिंक डाल दूँगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए भंवर जी, आपका जो ये जो निराशा हुई, आपकी जो निराशा हुई आरएसएस से, क्या आपको लगता है कि ये और भी लोगों में है और बढ़ रही है, या ज़्यादातर लोग आरएसएस से दूर होते जा रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं, जो ऑपोज़िट है वो सच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके करीब आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आरएसएस से जुड़ते हैं। खास तौर पे जो किशोर अवस्था के हिंदू युवा हैं, शहरी या गाँव के, खास तौर पे मैं हिंदी क्षेत्र की बात कह सकता हूँ, उसमें आप जिस भी युवा से मिलेंगे, वो ये कहेगा कि मैं आरएसएस में कभी न कभी गया। 1 महीने गया, 1 साल गया, 5 साल गया, ऐसे लोग उनके उसमें आते हैं चक्कर में, और ज़्यादातर लोग उनको छोड़ देते हैं, उनके साथ नहीं बने रहते हैं। लेकिन वो एक स्लीपर सेल की तरह बने रहते हैं, उनके समर्थक कभी मौका पड़ने पर वापस सक्रिय हो जाते हैं, मौका नहीं पड़ता तो वो उसी में लगे रहते हैं। तो लोग बड़ी संख्या में छोड़ते हैं, एक तो ये चीज़ ज़्यादातर लोग नहीं कहते हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। 100 मतलब 100 करोड़ हिंदू तो होंगे ना इस देश में, तो उसमें से कितने लोग अभी इनकी शाखाओं में आ रहे हैं? तो छोड़ने वालों का प्रतिशत काफ़ी है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों ने छोड़ कर के बाकायदा बोला है और लिखा है। जैसे मनोज मलिक ने, पंजाब के एक साथी ने एक किताब लिखी, मैं पिछले दिनों उसको पढ़ रहा था। एक व्यक्ति जो मूलचंद राणा गुजरात के इनके जो गुजरात सर्विस कमीशन होता है, उसके जो मेंबर रहे,
और ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भी बहुत करीबी आदमी रहे, वो व्यक्ति ने 49 ईयर्स तक आरएसएस के साथ काम करने के बाद में अपने मोह भंग पर एक किताब लिखी है, और वो गुजराती में, अंग्रेजी में और हिंदी में उपलब्ध है। वो उन्होंने लिखा है। सुधीश मिन्नी जो प्रचारक थे इनके, यहाँ से केरला से, उन्होंने बहुत भयानक तरीके से जो अपने अनुभव रहे आरएसएस के कार्यालयों में और प्रचारक रहते हुए, उन्होंने एक किताब लिखी है उसमें मलयालम में, वो काफी पॉपुलर हुई है। अभी आपने देवानूर महादेव की जो किताब आई है, कई भाषाओं में हजारों की, लाखों की तादाद में बिक गई है कर्नाटका में, उसके बारे में आपने सुना होगा। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि एक उनके प्रचारक शिंदे ने लिखा कि कैसे वो हथियार बनाने की ट्रेनिंग देते थे और बम बना रहे थे, और वो मालेगांव में बम विस्फोट हो गया, नांदेड़ वगैरह में, वो उन्होंने लिखा। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल करके बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा एक मनुस्ट्री मीडिया है, वो इन सब चीजों को, इन विचारों को बाहर नहीं आने देता है, और ये सारे विचार जो है बिखरे 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 से हैं। तो वो संगठित रूप से अगर ये सारा चीज सामने आए, तो बहुत लोग हैं जिन्होंने आरएसएस में रह करके बाहर निकल के एक्सपोज करने का काम किया। मुझे बड़ी संख्या में दलित और आदिवासी युवा मिलते हैं जगह जगह पर, और जो मेरे से ज्यादा भयानक कहानी सुनाते हैं, जो कहते हैं कि उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ, फिजिकल मारपीट तक हुई, कुछ और चीजें हुई, ये सब कहानियां सामने आती है। और अभी उन्होंने छोड़ दिया है, कुछ लोग बामसेप में, बसपा में, कुछ और अम्बेडकराइट मूवमेंट में उधर चले गए हैं। तो बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को समझ में आ रहा है कि वो जो पूरी आरएसएस की हिपोक्रेसी है, वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, उनका जो पूरा एजेंडा है उसको लोग समझ रहे हैं। लेकिन इस समय झूठ का गुबार इतना ज्यादा है कि उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सच्चाई की जो आवाज है, इतना ज्यादा चीजों को इन्होंने कर दिया है। आज अब इनके पास पहले से ही ये अफवाह फैलाने में माहिर थे ही, झूठ बोलने में माहिर थे ही। अब इनके पास सोशल मीडिया का एक बड़ा तंत्र आ गया है, प्रिंट मीडिया इनके पूरा कब्जे में आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कब्जे में आ गया है। तो ये अभी उस दौर में है कि तमाम आवाजें जो आ रही है उनको बिल्कुल कालीन के नीचे दबाए हुए हैं। जैसे मेरी किताब के बारे में चर्चा नहीं होने दी, वैसे ही बाकी किताबों के बारे में भी उन्होंने कोई चर्चा नहीं होने दी। तो मुझे लगता है कि लोग तो निकल रहे हैं, लेकिन उस बात को वो सारा इकट्ठा होकर के अगर अपनी बात को कह सके, तो शायद सच्चाई और ज्यादा तेजी से सामने आए। तो भंवर जी, अभी जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, बीजेपी का बोलबाला है, आपको क्या लगता है कि भारत कैसा होगा 10 साल के बाद, 15 साल के बाद? देखिए, जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो दिशा तो निराशाजनक है, क्योंकि जिस देश की कल्पना की गई थी और जिस एक पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जिसमें सबके लिए जगह होनी चाहिए, वो जो देश था, वो हालांकि वो कल्पना थी, वो एक आदर्श स्थिति थी, वैसा भारत हुआ नहीं, कभी था नहीं। हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली शायद घोषित नहीं था, लेकिन हिंदू राष्ट्र पहले दिन से ये देश था, क्योंकि हर बिल्डिंग सरकार की बनने वाली का भूमि पूजन होता था, मंत्र पाठ होता था, सरकारी दफ्तरों में मंदिर और देवता होते थे, सरस्वती वंदना सारे सरकारी स्कूलों में चलती थी। तो कहीं न कहीं उस हिंदू राष्ट्र के बीज मौजूद थे और उनको खाद पानी मिलते जा रहा था। लेकिन अब अनुकूल जलवायु मिल गया है और सत्ता का पूरा आश्रय है, और वो जितने भी, जिनको वो खुद ही फ्रिंज एलिमेंट कह रहे हैं, वो सारे तत्व अब खुल करके सामने आ गए हैं। और जिस हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत भयानक चीज कुछ बनने जा रही है। वो शायद मनुस्मृति का जो वो राष्ट्र था, या जो पेशवाओं का जिस तरह का एक ब्राह्मण राज था, उससे भी बहुत भयानक कुछ बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कोई भी आवाज के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि एक ऐसी तानाशाही में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां बाहर बाहर एक लोकतंत्र होगा, भीतर में कोई लोकतंत्र नहीं होगा। ये केवल दिखावे का लोकतंत्र होगा, आवरण होगा लोकतंत्र का, अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका होगा।
तो आप देख रहे हैं कि तमाम इंस्टीट्यूशंस बर्बाद कर दिए गए हैं। जो भी, चाहे आपकी न्यायपालिका हो, चाहे आपकी कार्यपालिका हो, चाहे आपका प्रेस हो, चाहे आपका चुनाव आयोग हो, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और इतना तेजी से उस सब चीजें जो आ रही है, अगर कोई लोग ये कहते हुए कि बलात्कारी जो लोग थे वो ब्राह्मण थे और संस्कारी थे और उनको जेल में नहीं रहना चाहिए, ये कहते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर अगर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ये देश छोड़ देता है, और न केवल छोड़ देता है, रिहा कर देता है, बल्कि उनका स्वागत करता है, सत्कार करता है, मुझे लगता है कि हम मानव होने की, इंसान होने की जो न्यूनतम योग्यता है, उससे भी नीचे गिरे जा रहे हैं। तो इतना गिरा हुआ राष्ट्र बनाएंगे हम, इसकी कल्पना नहीं है। ये अकल्पनीय राष्ट्र बन रहा है, जहां कोई दलित आवाज उठाता है और वो अपनी पीड़ा जब कहता है, एफआईआर दर्ज कराता, तो उसकी एफआईआर के खिलाफ हजारों लोग सड़क पे उतर जाते हैं, भगवा झंडा लेके, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, एससी एसटी एक्ट मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए। तो अब तो हाल ये है कि कोई महिला ये कहे कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, तो वो महिला की आवाज को कोई नहीं सुनेगा, बलात्कारियों के पक्ष में है। आपने आसिफा के मामले में देखा है कि जम्मू में जो हुआ। तो मैं ये देख रहा हूं कि ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र बने नहीं बने वो मामला नहीं है। मामला ये है कि जो बन गया है, यहाँ पर जब अफराजुल का एक हत्यारा लाइव हत्या करता है एक बंगाली मजदूर की, और उस हत्यारे के लिए लाखों लोग सड़क पर उतर जाते हैं और कोर्ट में भगवा झंडा गाड़ देते हैं। अभी जितेंद्र मेघवाल नाम के एक दलित की हत्या हुई, उसको चाकुओं से घोंट दिया गया, और उसके हत्यारों के पक्ष में जिस तरीके से लोग खड़े हुए, मुझे अब अंदर से कुछ परेशानी होने लगी है कि ये क्या देश बन रहा है, जहां पर किसी पीड़ित को ही दोषी बनाया जा रहा है, जहां न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची हुई है, जहां कोई ऐसा दरवाजा नहीं जिसको आप खटखटा सकें। और ऊपर से प्रधानमंत्री संविधान को चूम रहे हैं, और डॉक्टर हेडगेवार और सावरकर के साथ डॉक्टर अंबेडकर के चित्र लगाए जा रहे हैं। तो अजीब सा देश बनता जा रहा है, और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मुझे लगता है कि ऐसे देश में क्या नागरिकता होगी हमारी, और जिस तरीके से बड़ी आबादी को ये कहा जा रहा है कि वो साबित करें अपनी नागरिकता को। क्यों किसी को नागरिकता साबित करनी है? क्यों किसी को देशभक्ति साबित करनी है? क्यों किसी को अपनी योग्यता और साबित करना है? और कौन होते हैं ये सब साबित करवाने वाले? मुझे लगता है कि संविधान केवल किताब में रह गया है, और हिंदू राष्ट्र आ चुका है। हम हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं। हो सकता है ऑफिशियली वो किसी दिन घोषित हो या ना भी हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। हमने जिस मुल्क को, हमारे पड़ोसी मुल्क को इतना नफरत किया कि वो इतना कट्टर थे, वो सब थे, हम हिंदू पाकिस्तान हो गए। हम उनसे शायद वो 70-75 सालों में उसको सीख करके दूसरा दिशा ले रहे होंगे, हम वो दिशा ले रहे हैं। और ये दिशा ठीक नहीं है। खास तौर पे जितने भी हाशिए के लोग हैं, कमजोर लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, मैं एक ऐसा समय देख रहा हूँ जो अंधेरा है और गुलामी, जिसमें गुलामी दिख रही है, और उसको लेके थोड़ा निराशा होती जी, तो मेरे अभी आखिर के 2 सवाल हैं भंवर जी। पहला तो अभी आपने बताया आप क्या काम कर रहे हैं, वो किताब भी लिख दी, तो अगला क्या है आपके लिए? है। मुझे लगता है कि अभी कोई लंबी योजना बना के काम नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हर दिन जो चीजें सामने आती है, हर दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए उठ के खड़ा होना पड़ता है। अब वो आवाजें, जो प्रतिरोध की आवाजें हैं और जो लोगों के साथ खड़े होने वाली आवाजें हैं, वो खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, चुप करवा दी जा रही है। जो लोग बोल रहे हैं उनको अर्बन नक्सल कह करके या कुछ और कह करके, देशद्रोही कह करके अंदर बंद किया जा रहा है। आप सोचिए कि हाथरस की एक दलित लड़की के मामले को कवर करने के लिए एक पत्रकार जाए, जो कि हर पत्रकार का काम है, कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, और उस व्यक्ति को यूएपीए में बंद कर दिया जाए, आज दिन तक उसको जमानत न मिले, प्रतीक कप्पन को।
तो ऐसे दौर में क्या लंबी योजना बना के काम किया जा सकता है? हर दिन कहीं हत्या होती है, हर दिन कहीं बलात्कार हो रहा है, हर दिन मानवाधिकारों का इतना हनन है कि रोज सुबह उठ करके उन चीजों पर कुछ न कुछ करना पड़ रहा है। तो लंबा नहीं सोच रहे हैं, बस इतना सा सोच रहे हैं कि जितनी भी बची हुई डेमोक्रेसी है, जितना भी बचा हुआ भाईचारा है, जितना भी बचा हुआ ये देश जिसकी हमने कल्पना की है, वो बचा रहे और वो बचा रहे इसके लिए कुछ किया जाए। ये जो हिंदुत्व है, इसका मुकाबला करने के लिए एक बंधुत्व का निर्माण पूरे देश में हो, उसके लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल हर रोज उठते हैं और हर रोज कुछ करते हैं और ये पता नहीं कि कल क्या करना पड़ेगा और परसों क्या होगा और कितने दिन हम बोल पाएंगे और कौन सा वो दिन होगा जब जैसे भीमा कोरेगांव के नाम पर हमारे जो साथी अंदर बंद है, वो दिन हमारा कब लगेगा, लेकिन जब भी लगेगा उससे पहले जितने भी दिन हम हैं उतने दिन हम बोलेंगे, उतने दिन हम अपनी बात को किसी भी माध्यम से, जो भी माध्यम हमको होगा, उस माध्यम से हम बोलते रहेंगे और जिस राष्ट्र की, जिस समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्यायपूर्ण राष्ट्र की कल्पना संविधान में की गई, उस संवैधानिक राष्ट्र के पक्ष में जो भी बात हम कर सकते हैं और जो भी उत्पीड़ित अस्मिताएं हैं, उनकी आवाज को हम मुखर कर सकते हैं, वो काम हम करते हैं। तो भंवर जी, ये एक सवाल है जो मैं हर कोई गेस्ट आता है शो पे उनसे करता हूँ आखिरी में। व्हाई डू यू डू दिस वर्क? आप ये जो काम कर रहे हैं, वो क्यों करते हैं? अशरफ साहब, ये काम कुछ त्याग नहीं है और न ही मुझ में बलिदान का कोई भाव है कि मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है और ऐसा ही करना मुझे अच्छा लगता है, यही मुझे संतुष्ट कर सकता है। मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे भूख लगे और मुझे रात की नींद आए, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। मैं किसी की चैरिटी, किसी के कल्याण या किसी के लिए, किसी का उद्धार करने के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं अपना उद्धार कर रहा हूँ। एक नागरिक होने के नाते जो मेरे में नागरिकता का बोध है कि मेरा अपना एक देश है, मैं इस मिट्टी से, इस वतन से, इस मुल्क से प्यार करता हूँ, इसके तमाम लोगों से प्यार करता हूँ, इसका सब चीज़ों से मुझे प्यार है और वो अच्छा रहे, वो ऐसा रहे जिसमें सब लोग समान तरीके से जी सकें, कोई किसी का हक नहीं मारे और एक ऐसा वातावरण हो जहाँ हम भाईचारे के साथ रहें, खुशियों के साथ रहें और असल में हमारा मुल्क आबाद रहे और हम जो जय बोलते हैं भारत माता की, वो वास्तव में वो जय हो, उसके लिए ये काम है और ये काम आत्मसंतुष्टि के लिए है। ये किसी पे एहसान नहीं है। शायद मैं ये नहीं करूँगा उस दिन फिर जीने का कोई मतलब नहीं। तो मैं बिल्कुल ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीने के लिए और अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए ये सारा काम करता हूँ और मुझे ये करते हुए बहुत खुशी है। इसमें कितनी चैलेंज है, लेकिन मैं यही करूँगा। भंवर जी, आप शो पे आए और आपने जो बातें की आई, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके लिए ये बहुत सोचने वाली बातें हैं। इट्स वेरी थॉट प्रोवोकिंग, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये बातचीत करने का मौका दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं तमाम हमारे सुनने वाले लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि बस थोड़ा-सा एक संवाद बनाइए, एक ऐसा देश बनाइए जहाँ जिस जो हम जैसे नहीं हैं, हम जैसे कपड़े नहीं पहनते, हम जैसे खाना नहीं खाते, हम जैसी पूजा नहीं करते हैं, अ, उन तमाम लोगों के साथ एक बातचीत करिए और उनकी जगह खड़े होकर के सोचिए कि आज जो कुछ उनके साथ हो रहा है, अगर वो आपके और मेरे साथ हो, तो हमें कैसा लगेगा? हम एक अच्छा देश बनाएँ, बस ये सब लोगों से मेरी गुज़ारिश है। बहुत धन्यवाद आपका, आपने बुलाया और बात करने का अवसर दिया। Thank you all for listening. Please visit allindiansmatter.in, that's ALLINDIANSMATTER.in for more columns and audio podcasts. You can follow me on Twitter at Ashraf Engineer, that's ASHRAFENGINER, and All Indians Count, that's ALLINDIANSCOUNT. Search for the All Indians Matter page on Facebook. On Instagram, the handle is All Indians Matter. Email me at editor@allindiansmatter.in. Catch you again soon.